Assalamu alaikum. First and foremost, sorry for making you all guys awaited. दरअसल पाकिस्तान के इंटरनेट का जो है ना वो कभी पता नहीं चलता, कभी जो है ये बिल्कुल हाई होता है, कभी बिल्कुल लो होता है. तो खैर आई एम ट्राइंग टू लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब एज वेल, ताकि हमारी जो रिमेनिंग ऑडियंस है वो भी हमारे साथ इन टच हो सके. बट इन द मीन टाइम आई थिंक वी शुड गो विद द सेशन. ये ऑलरेडी जो है हम 11 मिनट्स लेट हो चुके हैं. So I'm very excited, as well as I'm feeling some kind of sorrowful that the event is going to be end tomorrow. Today, sorry. तो आज जो है हमारा फोर्थ एंड लास्ट सेशन जो है आर्ट ऑफ वोटिंग वर्कशॉप का होने जा रहा है. और आज का सेशन जो है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. द रीज़न बीइंग दैट कि हम क्या करते हैं, हमने जो है चलें ठीक है, हमें सिग्निफिकेंस पता चल गई, हमने लीगल रिसर्च भी कर ली, हमने मेमोरियल्स भी ड्राफ्ट कर ली, लेकिन जो सारा मटेरियल आपके पास आ जाता है, फिर लास्ट स्टेज आपका बचता है. सिर्फ 2 दिन का काम होता है, 2 या 3 दिन की मतलब प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओरल राउंड्स, जो कि आप डिसाइड करती हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू विन और लूज द कंपटीशन. तो वो सारा जो आपने मेहनत की होती है वो सारा कुछ जो है इन 2-3 दिनों में डिसाइड हो रहा होता है. तो अक्सर लोग जो होते हैं वो एक तो अपना उन्हें पता नहीं होता कि हमें मैसेज डिलीवर नहीं कैसे करना है, और जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें इफेक्टिव तरीके से अपना मैसेज डिलीवर कैसे करना है, मतलब प्रोसीडिंग्स किस तरीके से करनी है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज के सेशन में सीखेंगे. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई विश टू इनवाइट मिस खंसा टू हैव द फ्लोर. Over to you, Khansa. Yes, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. As it is told by Asan that we are having our last session and that on art of art or proceedings. So today's guest speaker name is Mr. Haziq Khalil Khan, and in our today's session we will be learning all the learnings we had in our last 3 sessions. It's a practical form of that learnings. So our today's guest speaker, Mr. Haziq Ali Khan, is currently working as a legal assistant at Office of Research, LUMS, and he has also participated in both national and international moot court competitions throughout his studenthood. And he has received Best Advocate Award at 11th Henry Donnet Moot Court Competition 2018. He has also received Best Oralist Award at First Bahariya National Moot Court Competition. He has represented Pakistan in GN Pictet Competition 34th edition 2020, and he has also invited to adjudicate first and second intra-moot court competition of PULC in 2019 and 2020. Not least at all, he has also worked with prestigious institutions working in Pakistan. Firstly, ICRC, International Committee of Red Cross, and he has also worked with RSIL, Research Society of International Law. So not wasting our more time to have with him, we would like to invite Mr. Haziq Ali Khan. Please, Mr. Haziq Ali Khan, you have the floor now. We are so appreciated and honored to have you. Thank you so much for giving us your precious time. You have the floor now. You can speak. All right. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are audible. Fine. Okay, so to begin with, first of all, I'm quite thankful for such a nice introduction and for just, clearing the things up that, okay, I mean, I don't need to, I think, so speak anything any further with regards to my introduction. I have been introduced quite well by you people. So first of all, I'm quite thankful to Hassan, to Khansa and all of your team. And this is quite a commendable step people are taking in terms of the moot courts and all, because the current situation, the present, the dynamics of this whole discipline of LLB and all is not the same as it used to be some years before. So these things are quite essential, which you are basically arranging. You guys will have to pardon me a bit because I am having a bit throat problem since 2 days, so you'll have to a bit bear with me for this. Anyhow, so for that matter,
I mean, I really would like to appreciate such steps being taken by you people. And, I would literally encourage everyone who can actually listen to me right now that, the advocacy, basically the field you all are choosing for, it is something all about your skills, which you have to basically display when you are on the podium, when you are in some court of law. Like theory, that is fine, that is, yeah, you can gain knowledge, you can attain things, but how would you deliver it is what matters at the most. i'll I mean, literally have seen examples like people with a lot of knowledge, with you could say like diversity of some sort of like degrees in their portfolio and all, but the major setback they have is that they cannot deliver it at the end of the day. So it all goes wasted. Whereas on the same, like at the like in the same very mood courts or on the same very platforms, I've seen people who might not have worked that much, who might not have researched that good, yet they were just able to like get their arguments accepted, to get their skills to be admirable, just because of the reason that they knew how to just put up the things. So this advocacy is something, this oral pleadings is something that is the most essential part of this whole argument structure of yours. You have articulated everything, you have researched it out, you have done everything out. Now, what you're supposed to do is, or how you have to do it, is what matters at the end. So without wasting any single minute, Asin, do you have the slides? I mean, can you please share them? I wish they were visible. Yeah. So I think so they are quite visible to you, but at the same time, okay, I would like to go bilingual. I don't think so. There is some international audience available. I mean, I was just trying to be like uh, solely in English just because I thought that there are some international speakers I was expecting. So I mean, of course, for them there might be a problem if I would go in Urdu. Otherwise, I'd like to stay bilingual so that it might be easier for everyone to understand it. So, Hansa, do we have any international audience so far? Because I know some people. I mean, I'm quite thankful to them as well. They registered it, like, they wanted to hear me, but I'm not sure whether they are there or not. So if they are not along, I would just like to go bilingual. And this is something I would just explain in the further presentations as well, that it is something imperative, because the thing we are doing right now, it has nothing much to do with your English. It has other aspects of it as well that are to be taken care of, most importantly. And then comes your English. So, I mean, can we go bilingual? यस वी डू हैव बहुत, मतलब, लेकिन हमारे पास लास्ट टाइम पे जो फीडबैक आई है वो ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि आप ना उर्दू को प्रायोरिटाइज करें. सो आई वुड लाइक बिल्कुल, मैं मुझे भी इसमें कोई इशू नहीं है उर्दू की प्रायोरिटाइज करने में, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग बेसिकली समवन फ्रॉम टर्की एज वेल. तो उनके लिए फिर उनको उर्दू में समझ नहीं आएगी, तो सिर्फ इस वजह से. तो अगर नहीं है हमारे पास इस तरह कोई, तो देन आई मीन इंडियंस आर फाइन, ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड. आई मीन हिंदी उर्दू नो में नो आई समझता डोंट नहीं. थिंक सो कि इस वक्त वो मौजूद हैं. चलो ठीक हो गया. Then I would like to go bilingual. So, without wasting any single second, I would like to proceed basically. First of all, अच्छा जी, art of oral pleadings. अच्छा, अब वही वाली बात पे मैं आना चाहूंगा कि जी हमने क्या किया. सबसे पहले the first thing we did is कि जी हमें एक mood problem मिला. सही है. अच्छा, mood problem आया. mood problem के बाद the most imperative part of it is the assignment of the roles. ठीक है. देखे, इसमें ये बेसिक कुछ भी नहीं होता कि इफ समबडी इज अ स्पीकर तो ही इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी इन अ टीम, या उसको कोई अथॉरिटी ज्यादा मिल गई है, कुछ ऐसा नहीं है. एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन फोर्टे. ठीक है जी. कोई स्पीकर अच्छा होता है, कोई रिसर्चर अच्छा होता है. नाउ आई कैन लाइक, मुझे आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड रिसर्चर. I mean, if you would see जो मैंने present किया इस वक्त जो है ना, that might not be that much efficient or good as you might have seen in the previous slide shows and all. Why? Because I'm like, I can admit it simply that okay, fine, I am not a very good researcher. I cannot you can say produce good slides. I might not be able to produce some good research, but I can deliver it well. So I always assume the role of a speaker. So the very first thing is, when you get a mood court problem, first of all, the most essential part of it is कि भाई आपने roles assign करने होते हैं.
you must have got a very good researcher first of all, ठीक है जी. But that does not at all mean कि आपके speakers ने जो है वो सिर्फ बोलना ही है और research नहीं करनी, ठीक है. Why? The very first thing out of it is कि जब किसी की हुई research होती है, you cannot elaborate it as good as you can thing which you have researched by your own self, no matter how good or bad it is, ठीक है. अच्छा, I would like you people to just note down the things as well, because जैसे मैंने बताया कि the slides might not be that much sufficient, so you can just simply note down the things. So I'll recommend you people to please have some notepads and all, and keep the key points noted down if they are missed into the slides, because I didn't have much time. Even I'm just directly coming from my office, so इस तरह का सीन भी थोड़ा सा था, तो उसके लिए you have to pardon me. Anyways, so to start up, भाई आपके रिसर्चर सिलेक्ट हो गए, आपके स्पीकर्स सिलेक्ट हो गए. अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज ये भी आती है कि you have to form some sort of a sequence. Let's consider an example of a cricket match. अब आप लोगों ने क्रिकेट मैच में भी देखा है, तो वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन कि पाकिस्तान प्लेड रियली वेरी वेल दिस टाइम, सो वी आर क्वाइट प्राउड ऑफ इट एज वेल. तो अब आप अगर देखें उसके अंदर, तो देखें एवरी प्लेयर, एवरी बैट्समैन, एवरी बॉलर, दे हैव गॉट देयर स्पेसिफिक रोल्स, ठीक है जी. जो बंदा पावर प्ले का बॉलर है, आप उसको जो है जो बंदा पावर प्ले का नहीं है, अगर आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग करवाने के लिए ले जाओगे, तो वो आपको एक ओवर में 36 खाएगा, और आपका जो है ना वहीं पे काम तमाम करवा हो जाएगा. तो उसमें ये चीज इसी तरीके से ये होता है कि लेट्स सपोज अच्छा समवन हैज रेज्ड अ हैंड. अच्छा, इसमें ये चीज है कि आई हैव नो इशू इन टेकिंग क्वेश्चंस इन बिटवीन, लेकिन आई कुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द स्लाइड्स या ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन यू माइट गेट most of your answers, but still if they are not they remain unanswered, you can just simply note them down so that we can answer them. मैंने पूरा एक सेगमेंट रखा हुआ है एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का. उससे बेसिकली होगा ये कि क्योंकि हो सकता है फिर जो है ना वो ना हो, मल्टीप्लिसिटी ना हो जाए, क्योंकि ये भी हो सकता होता है कि कोई ऐसी बात होगी जो आप मुझसे पहले पूछ लो, वो बाद में मेरी स्लाइड्स में हो, तो वो फिर इस तरीके से हो सकता है. बाकी मुझे कोई इशू नहीं. इफ यू वांट टू गो लाइक दिस प्लीज. अच्छा, एक्चुअली इट्स मी, मैं जो है अपनी दूसरी आईडी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. यू कैन गो अहेड. Okay, fine. So whatsoever the questions are, I would request you people to just note them down. So if they remain unanswered still, I mean, you will get an ample of time. I have a complete slide for that, so no worries. Okay. So if you just try to move on essentially to the first slide of ours today, that basically is the skeleton of it. Okay, what we are going to discuss today. So fine. So we will basically start out with an introduction, a brief sort of an introduction. मेरे ख्याल से सबको पता है oral readings होती क्या है, but just एक तरीके से कि आपको कुछ point अगर कोई clear ना हो उसके ऊपर, that is basically that. Then we'll differentiate between the moot courts and debate declamations. That is something quite imperative, and I would request you all to please focus on it as much as you can, because this is the major dilemma I have faced throughout my mooting career. कि लोगों की ये misconception होती है तरीके, यार शायद हम कोई अंग्रेजी का कंपटीशन जीतने आए हुए हैं तो हमारा एक्सेंट मैटर कर जाएगा, शायद हमारे हैंड जेस्चर्स मैटर करेंगे. देन अगेन योर रोल, जिसकी मैं थोड़ी स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था, देन यू हैव टू नो द जज, द लॉ, द फैक्ट, देन रिलायंस ऑन द पेपर्स, देन द टीम वर्क, how to tackle the questions, and then of course the question answers, and then we move to the conclusion. So first of all, moving towards the first slide, that is the introduction of it. So Asan, please, can you? अच्छा फाइन. अब इंट्रोडक्शन बेसिकली मैंने किसी जूरिस्ट की बात नहीं उठाई, कोई लगी बंदी बात नहीं उठाई. इंट्रोडक्शन मतलब मेरे ख्याल से ओरल रीडिंग्स अगर आप गूगल टाइप कर लोगे जूरिस्ट की, आपको 1000 बातें मिल जाएंगी. तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि फिर मुझे कोई जरूरत है कॉपी पेस्ट की अगर मैंने करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी प्रेजेंटेशन का कोई फायदा है इसमें. So that is why I am going with the presentation with the definition of my own, या फिर you can say कि what I consider oral readings to be. ठीक है जी. So they are basically, this is the art of presenting your case in front of the panel. Okay, you have got the research done, you have got your arguments prepared, you have got everything done. Now you have to deliver. That is the oral pleadings. That is the backbone of the whole case which you are preparing since past I don't know how many days. Okay, even in your practical life, when you would just land into the courts, this is how it is. You will get a case
previously you were doing the moot court, so they were just hypothetical. In the court, you'll be having an actual client, an actual case which actually happened. The facts would be real. तो उसका आरा ही अलग होता है असल में. You'll love it. I mean, once you would be, you'll go through the moods and you'll land into the courts. First of all, you would just love it कि यार अच्छा, I am actually defending someone. पहले तो मेरे कोई होता नहीं था. I was just हवा में बातें. तो लेकिन this moot court is something that is gonna prepare you for that so very well that you would be, I would say, 100 steps ahead of the normal lot who have passed out the law, like by a mere just attempting the papers and not even knowing to practically apply it anywhere. So it is the main element of a lawyer, according to me, which he or she shall have the grip upon, and rest what all it is, it comes as the ancillary matters. जिस तरह से मैंने शुरू में बात की कि your oral pleadings are actually the backbone of it. तो अगर आपकी research बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा सब कुछ किया, but you don't know how to deliver it, then unfortunately you fail. You literally fail. I mean, आपके वो थद्दे के थद्दे जो आप किताबें लेके गए थे, आपने जो कुछ, who was actually he was just literally some weeks senior. I mean, he just literally joined the courts of law, and he could actually defend his case so well as compared to the one who was on the other side, the opponent lawyer, who was basically he was having more than experience of more than 10 years, and he literally defeated them the case just on the basis of what the banda jo tha, he was an experienced mover. I know him very well. I could see him presenting the case so very well that the other lawyer, he was actually, he was like, he could not gather himself आपके भाई कल का बच्चा आके मेरे साथ क्या कर रहा है, and he could literally say कि जी सर ये कल का बच्चा है, इसको ये हो गई. ठीक है नदीम अली, फाइन. सो ये सीन था कि मैंने जो है ना लिटरली उनको देखा कि वो जो है अदालत में वो सिर्फ ये इतना कुछ ही कह सके कि जनाब साहब जो है सर जी ये तो कल का बच्चा है, इसको पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता. नहीं, लिटरली लाइक he bashed him away. So that is how a lawyer should be like. This is what the oral pleading is, according to me. So it is actually the delivery of whatsoever you have collected, you gathered with respect to the case you had. ठीक है जी. Next slide, please. अच्छा जी, yeah, this slide is something I consider to be the most important part of my today's presentation, and I require like a full sort of an attention towards it, and I am expecting quite much of questions from this. Fine. अच्छा जी, अब आपने डिफरेंशिएट क्या करना होता है मूड में और डिबेट. अच्छा, अब आपने एक चीज तो गौर करनी, देखें ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि जनाब साहब अंग्रेजी बोलनी ही नहीं है, या अंग्रेजी बोल को हम वी स्टार्ट अबॉमिनेटिंग इंग्लिश के जी ये तो कोई पता नहीं कोई गंदी चीज है, या इसको बोलने से कोई इंसान गुलाम बन जाता है, या ऐसा कुछ चक्कर है. देखें, बीइंग अ लॉयर and of course being the law students, all of you must all be knowing कि आपकी जो official languages है they are basically two. ठीक है जी. English is actually your official language. अब इस डिबेट में जानने की बात मुख्तलिफ है कि जी आप जो है ना वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बात एक अपनी जगह पे हो गई, लेकिन ये है. ठीक है जी. आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यू गॉट टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड उर्दू. ठीक है जी. इंग्लिश इज इक्वली एक्सेप्टेड इनटू द कोर्ट्स एज उर्दू इज. फाइन, फेयर इनफ. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं बोलनी आती तो शायद आपका इंटेलेक्ट जो है ना वो कम हो गया हो, या आपको हम जो है ना आप किसी को जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑफ हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. आपको नहीं पता कि वो हो सकता है कि वो कितना कोई जो है ना. तो दिस बैरियर जो हमने एक हमने जो एक स्केल अपनी तरफ से बना लिया हुआ है कि शायद अगर मैं जो है ना अंग्रेजी अच्छी बोल रहा हूँ so it is going to impress the audience. This is what I actually first of all myself experienced in the international moot court when I went to Bali in 2020 March. So what I basically observed was कि ये जो English का complex है ना, basically it was basically with us Pakistanis, Indians, Sri Lankans कह लो कुछ हद तक, नेपाल. I mean जो ये हमारा एशिया का थोड़ा सा साउथ एशिया वाला जो पोर्शन है ना इनका. उसके अलावा I have seen people like there were literally participants who didn't even know a single word of an English. वो सैर करने आए थे, चुप करके बैठे हुए थे, उन्हें जीत हार से भी फर्क नहीं पड़ता था. They just came for a trip
उन्होंने वहां बैठे और वो लिटरली देवर लाइक डेफ एंड डम्ब, उनको नहीं पता था क्यों अंग्रेजी आती नहीं थी। अब यूरोप को हम बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, अगर आप लोगों में से कोई अप्लाई भी करेगा एलएलएम वगैरह के अंदर, यू वुड कम टू नो उनकी अपनी लैंग्वेज की बहुत वैल्यू है। यूरोप के अंदर हार्डली, अगर आयरलैंड इंग्लिश बोलता है, यूके इज नो मोर इन यूरोप अगेन, ब्रेक्सिट हो गया हुआ है, बाकी हर बंदा अपनी लैंग्वेज बोलता है। पोर्चुगल जा रहे हो पोर्चुगीज बोलनी पड़ेगी, जर्मनी में जा रहे हो जर्मन जर्मन बोलनी पड़ती है आपको। आप कोई भी थोड़ा उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, इट हैज गॉट सम, तो a declamation and a moot court competition. When you are in a moot court competition, you are assuming yourself to be in the court of law. So you have to be like that. You have to be composed. You have to be brief and crisp in your law and in your fact, not on your English accent, not on your hand gestures, not on your body language like that. I mean, body language in general, like, of course, composure is also a part of a body language, but it doesn't mean that you started like, like jumping or doing like this. So the first thing is, आपको इंग्लिश कंपटीशन नहीं बनाना इसका, आपने इसको मूव कोर्ट बनाना है, और बाकी की जो बातें वो मैं आगे आपसे करूंगा कि वो जो आप डिलीवर कर रहे हो आपने करना है। द सेकेंड थिंग इज स्पीक असर्टिवली। पहली चीज तो ये वाली आ जाती है कि जो कुछ प्रिपेयर करके आए हो, प्रिपेयर इट वेल, उसको भूलोगे नहीं, ठीक है जी। लेकिन ऑफ कोर्स वही वाली बात है, जब आप पोडियम पे आते हो तो यू हैव गॉट अ लॉट मच टू केटर। आई मीन कोई भी बंदा, आई मीन कितना को बड़ा स्पीकर हो जाए, कितना को बड़ा वकील हो जाए, आपको ये बात अगर कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी ही इज बेसिकली नॉट टेलिंग द ट्रूथ, कि शायद उसको पोडियम पे जाते साथ ही इज इक्वली कॉन्फिडेंट एज ही इज नॉर्मली। नो, इट इज नॉट द केस लाइक दिस। आपकी जो असर्टिवनेस होती है ना, दैट मैटर्स। और आपके पहले जो 2 से 3 मिनट होते हैं, साथ ही मैं इसका दूसरा पॉइंट भी कवर करूंगा कि यू हैव टू होल्ड योर नर्व्स, ठीक है जी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अब आप, देन अगेन आई वुड लाइक टू रिवर्ट टू द एग्जांपल ऑफ दिस क्रिकेट मैच एंड ऑल। अब आप देखें कि बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब एक प्रेशर आता है ना, तो दे डू मिस्टेक्स, ओके, दे हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। पहली 2-3 बॉल्स के ऊपर, उसके ऊपर दे टेक टाइम टू सेट। इट इज लाइक एक्चुअली लाइक दिस। आप जब अपने पोडियम पे जाते हो तो आपका बेसिकली एक, जब आप, यू हैव टू सेट द स्टेज, you have to set yourself up। अब इसके अंदर आपको जो शटर करने के लिए बैठे हुए हैं, दैट आर द जजेस, सही है। जो आपका पोडियम है, आप, दैट इज बेसिकली योर डोमिनियन। ये मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस भी करूंगा। दैट इज योर डोमिनियन एंड द जजेस, दे आर देयर टू ब्रेक इट, सो यू आर डिफेंडिंग दैट। तो बेसिकली होता क्या है, वेन एवर यू वुड जस्ट गो, तो जो जजेस का काम ही बेसिकली ये है कि आपके कॉन्फिडेंस को शटर कर दें। और आई हैव लिटरली सीन पीपल के वो गिव अप कर जाते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन के ऊपर ही। पूरा पूरा केस तैयार करके गए हुए थे, मेहनत करके गए हुए थे, सब कुछ करके गए, वहां जाके जजेस ने पहला क्वेश्चन जानबूझ, देखो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द जज टू बी नाइस विद यू, फर्स्ट थिंग, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के जज मुझसे शायद केस का ही सवाल करेगा। आई मीन आई लिटरली हैव बीन एडजुडिकेटिंग, मैं लोगों से ये भी पूछ लेता होता हूँ कि भाईजान आपने सुबह नाश्ता किया। आई लिटरली डू इट जस्ट फॉर द सेक कि भाई मैं देख, जस्ट टू सी हाउ मच इज ही कंट्रोलिंग, हाउ मच लाइक कॉन्फिडेंस डज ही हैव इन हिमसेल्फ, सिंपल इज दैट। तो उसको मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उसको डेविएट कर दूंगा। सो अब उसमें क्या चीज आती है आपकी, होल्ड योर नर्व्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंडली स्पीक असर्टिवली। अब होता क्या है, बेसिकली आपके माइंड से स्किप हो गया, ऑफ कोर्स होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब कुछ नहीं याद करके जा सकते हो, इंसान हो, उसके बाद इतना कुछ चल रहा है, लोग बैठे हुए आपको वहां से दूर करने के लिए, यू माइट स्किप थिंग्स। लेट्स सपोज समथिंग हैज बीन लाइक क्वेश्चन दैट यू डोंट नो, और यू जस्ट हैव स्किप फ्रॉम योर माइंड। अब उसके अंदर बेसिकली आपने करना क्या होता है, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली स्टे क्वाइट, यू हैव टू स्पीक समथिंग, बट स्पीक इट असर्टिवली, ठीक है जी। देखो केस तो आपका बेसिक वही है ना, आपका अगर एक आर्गुमेंट स्किप हो भी गया है, I literally have been quoting false case laws, लेकिन with such a confidence कि I mean literally I could get away with it। लेकिन फिर अभी अगली जो स्लाइड आएगी उसमें आपको देखना पड़ता है बेसिकली थोड़ा सा कि जज आगे किस कैलिबर का बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो है ना, मैं जो आप ये नो दाई जज वाली जो हम बात करते हैं, वो खैर आके आपसे डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। बट ओवरऑल व्हाटसोएवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक, स्पीक assertively, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, इनफ ऑफ इट कि अगले बंदे के कॉन्सेप्ट से ला के रख दो, ठीक है जी। आप जब बोल रहे हो ना, तो उसको इस तरीके से बोलो कि भाईजान ऐसा ही है, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है, आपको नहीं पता, ठीक है।
लेकिन of course आपने you don't have to give this impression to the judge, लेकिन you have to be that much confident in your speech that okay fine मैं ये हूँ, ठीक है जी, मैंने ये बात की है क्योंकि मैंने पढ़ के की है, मेरे पास ये लिखी हुई है या कहीं पे ये बात एग्जिस्ट करती है. So the three major points, first of all, you don't have to consider it as an English speaking competition. You don't have, fine, just have some sort of a grip on English. Of course, that is not a bad thing at all. Yet, focus more on your case, focus more on your law, focus more on your facts as compared to your English language skills. IELTS नहीं हो रहा, ठीक है जी, स्पीकिंग का नहीं है कॉन्टेस्ट, लॉ का कॉन्टेस्ट हो रहा है. हाँ, अगर डिबेट डेक्लेमेशन है और had it been a slide with like मेरी presentation ये debate declamations के ऊपर होती, of course I would have told you कि भाई आप you have to be very sound, you have to be very firm on your English speaking skills, your accent, your grip and all. But now it is moot court competition. So the very first thing is you have to be very much particular about the law and fact, and on the second or third comes your this English speaking skills. Secondly, speak assertively, be very confident, be very firm, be very crisp, clear. ठीक है जी, तेज अंग्रेजी बोलने से ना impression नहीं बनता है. आपने you simply have to consider कि आपके सामने toddlers बैठे हुए आप उनको पढ़ा रहे. This is how you have to go when you are in a moot court competition. You are not, you don't have to take them as the experts. You are the expert, and you are actually teaching some kindergarten kids, and you have to go like this. Speak assertive or speak this much confident. Speak smooth. कोई चक्कर नहीं है कि मैं शायद मैं एमएनएम का रैप करूंगा तो जनाब साहब जो है इनको लगेगा वो अंग्रेजी आती है, ये ले गया, ठीक है. इस माइंडसेट से नहीं जाना. होता था किसी जमाने में, अंग्रेजी का माइंडसेट वो चेंज हो चुका हुआ है. बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहे हैं. इट इज सो गुड टू सी कि मतलब है ना लेटली अभी देखो कि ये अब जिस तरह से इन लोगों का इनिशिएटिव है, मतलब दे पीपल आर गेटिंग अप. अब इनको आप कहोगे जनाब साहब जो है ना मैं इनको अंग्रेजी इंप्रेस कर लूंगा, उन्होंने बड़ी सुनी की जिंदगी में, उनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी. You have to go with your law and fact. That is what is gonna basically impress them. कि हाँ यार ये बात है. And then hold your nerves. जो पहले 2 से 3 मिनट्स है ना, it is all about that. जो बंदा पहले हार गया, देखो जब आप जब एथलेटिक्स होती है, आपने कभी 100 मीटर रेस अगर देखी हो, they basically like when they run, उसके अंदर देखो दोनों बंदों का तकरीबन एक जैसा स्टैमिना होता है, दोनों बंदों की एक जैसी तैयारी होती है. The one who gives up earlier loses. Simple as that. ठीक है जी. इधर से आप भाग रहे हो, इधर से आपकी अपोनेंट टीम भाग रही है. आपने शायद आप अपनी नर्व्स को क्योंकि जब आप अपनी नर्व्स में वापस आ गए, आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ गए, देन यू कैन डिलीवर व्हाटएवर यू वांट. आपको चीजें नहीं भूलेंगी, आपका कांपोगे नहीं, आपको आपका दिमाग चलेगा, आपको जवाब आएंगे, पर आपको सब कुछ आता जाएगा. तो the earlier you hold on your nerves, the earlier you're gonna win. ठीक है जी. तो लेट्स सपोज आपकी नर्व्स में आपने जो है ना 2 मिनट के अंदर अपने आप को संभाल लिया, एज कम्पेयर टू योर ओपोनेंट, वो 5 मिनट तक जो है ना उसको संभाला करता रहा. तो मूड का टाइम तो चल रहा था, तो वो 5 मिनट के वो 5 मिनट तक मार्क्स कटवाए उसने, आपने 2 मिनट तक कटवाई 1. सो दिस इज हाउ इट इज. तो पहली तो ये 3 पॉइंट सबसे पहले हैं. आई मीन आई थिंक सो इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल, तो आपको वो जो है ना ये यू कैन टेक प्रेजेंटेशन अलोंग एज वेल. और लेकिन इसकी जो मेजर जो चीज है स्लाइड की बेसिकली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स व्हिच यू हैव टू बेसिकली have a firm grip on कि भाई ये जो 3 चीजें you have to be very much clear about it. Next slide please. Know your role. Infantry. अब मेरे ख्याल से तेरा 100 participants माशाल्लाह, तो मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा. So otherwise I would have loved literally to just know about infantry जो है ना. Okay, is there anyone who can actually tell me what is an infantry? चलो, can someone raise a hand? किसी का है कोई इम्तियाज जी? इम्तियाज, कैन यू प्लीज टेल अस इन्फेंट्री क्या होती है, इन्फेंट्री का रोल क्या होता है? सर इन्फेंट्री एक्चुअली आर्मी की रेजिमेंट होती है जो आगे से मतलब मैदान में लड़ाई करने के लिए थी. ये मेरा इंटरनेट खराब है या आई थिंक वहां से थोड़ी ज्यादा तेज आवाज आ गई थी.
हाँ मुझे तो डिस्टॉर्शन फील हुई, I couldn't hear you इम्तियाज, I'm sorry, मुझे नहीं पता ये बाय द वे ये आंसर करेक्टली कि वही आर्मी वाली जो आप पूछना चाह रहे थे कि जो लोग महाज पर होते हैं. fine, so yeah, somebody replied soldiers marching or fighting on foot. अच्छा, good one. तो basically होता क्या है कि जी you are actually in a sort of battle, ठीक है जी, you are in sort of like distortion. यार ये डिस्टोर्शन का प्रॉब्लम मेरी साइड से हो रहा है या क्या चक्कर है? You are perfectly audible. उनकी आवाज थोड़ी ना डिस्टॉर्ट कर गई थी, so but I was able to catch what he wanted to say. हाँ मतलब क्योंकि अगर उनको समझ नहीं आ रही फायदा नहीं है। एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे कि जी व्हाट इज एन इन्फेंट्री। अब बेसिकली होता क्या है कि जी जो मेजर एक परसेप्शन है अबाउट आर्मी दैट इज कि भाई फौज जो है वो सिर्फ लड़ती है, राइट? तो ये जो लड़ने वाले बेसिकली होते हैं ना, द वन हु आर लाइक ऑन द फ्रंट लाइनर्स, जिस तरह से अभी हम कोरोना की बात कर रहे थे तो द डॉक्टर्स वर द फ्रंट लाइनर्स, ऑल अदर्स वर द एंसिलरी टू दैट, ठीक है जी। बाकी सारे सपोर्टिंग आर्म्स होती है। द वन हु इज सपोज्ड टू डिलीवर इज द इन्फेंट्री। So being an oralist, you are the infantry of your team, ठीक है जी। Let's suppose 5 बंदों की टीम है, एक राउंड के अंदर 2 oralists allowed है, so they are on the infantry role, they are on the role to deliver. Rest of them, they are actually the technical arms, the supporting arms, the whatsoever you can call them. Fine. So you are the ones who are the infantry of it. So of course, the major responsibility is on your shoulders. Now it is you who has to deliver. Research हो गई, researcher was the supporting arm, ठीक है जी। उसने researcher ने करना क्या है, researcher ने आके जनाब साहब आपको बहुत कर दी तो आपको support कर देगा, चिट रख देगा, memorial बना दिया, लिख दिया, ये सब कुछ। The major thing which is to deliver, that is you. So just take an example के जनाब साहब जो है ना, you are there to fight, ये कुछ कर लें, you collected the weapons, ordnance ने आपको weapons ला के दे दिए, आपको जो है ना उसने shielding कर दी, आपको सब कुछ कर दिया, but now it is you who is having the weapons in the hand and now you are going ahead, and who against whom? Against the opponent and the judges, ठीक है जी। So you are being कह लें कि जी confronted from the front and from the flanks as well, ठीक है जी। फ्रंट पे कौन होता है? दे आर द जजेस, ठीक है जी, द मेजर। अब उनको एनिमी ऐसा ना पता चले कल वटे मार जाके उनको, मैं सिर्फ एक रोल एज्यूम करने की बात कर, ठीक है। तो सो द मेजर वन इज द जजेस, ठीक है जी, दे आर देयर टू शैटर योर कॉन्फिडेंस। सो आपकी बैटल बेसिकली अगेंस्ट देम, एंड ऑन द फ्लैंक्स, हु इज ऑन द फ्लैंक्स? द अपोनेंट साइड इज सिटिंग। इफ यू आर एप्लीकेंट, दे आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट, इफ यू आर द रिस्पोंडेंट, दे आर सिटिंग ऑन द राइट। फाइन, सो that is it. So you are, first of all, you must know that your role is to deliver, ठीक है जी। पूरी टीम की पूरी मेहनत जो है वो आपके शोल्डर्स के ऊपर है। So it is something that matters जो आप करने लगे हो पोडियम के ऊपर, ठीक है जी। Don't take it light. You have to prepare for it and you have to be sufficiently equipped with this. And then what is okay? So we have got some. Okay, we have got some participants from India as well. Heba, welcome and thank you very much for we are really honored to have you along. So, you are a bit late, so we were just talking about the role of the basically oralists. So yeah, and your dominion is your podium. Now, what does that mean? That when we say that podium is your dominion, basically, scene ये है कि भाई your podium is not that only the shelf, that wooden thing on which you are actually standing. Your podium comprises of all what you are having along. Okay, what you are basically equipped with. अब आपके पास जो arguments है, जो structure है, वो सारा कुछ है, that is on your podium. So in short, when I say that the podium is your dominion, your whole case is your dominion. That is your podium, that is your platform, and you have to stand over there and you have to win it. You have to take it away from there. So you are the infantry. You have been provided with enough support and equipment. Now it is you who has to deliver.
If you want, you are gonna waste everything, right? So you are the infantry, your podium is your dominion, and you are being attacked by two sides at the same time. The first side that is comparatively a bit more difficult, that is the judges, and the flank that are the opponents who are noting down what you are saying, and they are gonna rebut it and they are gonna reply to it. So this is a dual role, and this role must be in your minds whenever you are going to present any case of yours. Having said that, moving towards this next slide, अब बेसिक जो 3 पॉइंट्स आते हैं जो आपको हमेशा से याद होने चाहिए, और इसको इसी सीक्वेंस में आपने याद करना है. यू बेटर नोट इट डाउन, यू बेटर टेक इट अवे समवेयर लाइक दिस. अब मुझे नहीं पता, बहरहाल द वेरी फर्स्ट थिंग इज नो द जज. Fine. So know thy judge. Now, what does it mean that know thy judge? अच्छा, अब इसमें बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं. When applicant, when respondent. देखें, when you are the applicant, you are the one who has to set the stage. ठीक है जी, you have to get the things in flow. You have to take the momentum on. तो जब आप एप्लीकेंट होते हो, देखिए जब आप रिस्पोंडेंट होते हैं, दैट इज व्हाई वी मूवर्स, और ऑफ कोर्स जो आप लोगों में से करते रहे उनको भी पता होगा कि वी बेसिकली कंसीडर द सेकंड साइड, यस, बीइंग द सेकंड साइड, बीइंग द रिस्पोंडेंट और द डिफेंडेंट, वी कंसीडर इट टू बी अ बिट easier as compared to be the applicant. Why? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो है ना, the court is already in motion, एक चीज हो चुकी भी होती है. It is a bit easier to just get the mind of the judges and of the second team. ठीक है जी. लेकिन सबसे पहली जो बात होती है कि how to get the mind of your judges. ठीक है जी, when you are an applicant. अब आप लोगों को जब बंदा मूड कोड कर रहा होता है ना, तो दे आर लाइक, बंदा सोचता है कि यार मैं हर एक चीज को एक आर्गुमेंट के अंदर कवर कर दूं और मुझसे इस पे सवाल ही ना हो, स्पेशली व्हेन यू आर एन एप्लीकेंट. सो ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ की पॉइंट ऑफ इट. डोंट डू दिस. अपने आर्गुमेंट्स को डेलिबरेटली थोड़ा सा ओपन एंडेड रख के जाओ, सो दैट व्हेन यू आर, लेट्स सपोज, अब देखें जैसे कि लेट्स से हम IHL की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, IHL का कोई केस आता है एंड समवन सेज के जी, लेट्स सपोज इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आयक की बात हो रही है. ठीक है जी, आयक का केस है. हम जाती जाते हैं, अब पहली चीज तो ये है कि मैं करूँ, मैं सबसे पहले आयक को जो है ना एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं उसके एलिमेंट्स बताऊं, फिर मैं सारा कुछ करके फिर मैं कहूँ जी इसलिए ये आयक. व्हाट आई वुड डू, उससे होगा क्या बेसिकली? What I would do is I would just simply go, I would say it is an IAC and that is why it happened. ठीक है जी, जो भी चीज थी भाई इस वजह से ये जेनेवा कन्वेंशन इसमें मैंने अप्लाई कर दी. इट इज, अब मैंने क्या किया, आई एक्चुअली इनवाइटेड अ क्वेश्चन फ्रॉम द जज कि भाई मुझसे पूछो आयक होती है. दो चीजें होंगी इससे. पहली चीज तो इससे ये होगी, द जज वुड बी इंट्रीग्ड. अच्छा, तो जज आपसे क्वेश्चन करेगा, अब उधर से या इंटरनेशनल. सो अब इससे बेसिकली सबसे पहली चीज ये होगी कि जो जज है ना आपका, आपको सबसे पहले तो जज का कैलिबर समझ में आ जाएगा कि जज का कैलिबर क्या है. ठीक है जी, जज का, तो हाउ यू डू इट, यू इनवाइट अ क्वेश्चन, यू जस्ट पुट द क्वेश्चन इन द माउथ ऑफ द जज, पूछ मुझसे. ठीक है जी. अब अगर तो कोई इस तरह की चीज है कि जो कि जज ने आपसे पूछी, और then you have to be like sound enough, you have to be a bit observant enough कि यार अच्छा इस बंदे का कैलिबर कितना है. उसको उसी क्वेश्चन में से, लेट्स सपोज नाउ ही सेज ओके व्हाट इज एन आईएक. आप कहते हो कि जी सर जी, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट when the two state parties are actually fighting together across the borders, that is an IAC. आपने इतनी सी बात, अभी भी आप उसको फुल. अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और देखनी होती है कि टाइमर का भी हिसाब रखना होता है. कभी कुछ कोर्ट्स के अंदर वो आपको पहले ही पता होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ के आप जाते हो कि उसमें रोक रहा है. अगर तो टाइम रोक रहा है देन इट इज फेयर एनफ. टाइम नहीं रोक रहा तो यू कैन जस्ट कंप्लीटेड विद ये अब आपके ऊपर है, आपने किस तरीके से लेके चलना है. दैट इज ऑल इम्प्रोवाइजेशन. आपने अपने टाइम को लेके चलना होता है. तो आप उसको बेसिकली क्वेश्चन इनवाइट कर दोगे. अब वो उसी हिसाब से देने गए कि भाई आपका टाइम अगर तो रुक गया हुआ है फिर ठीक है, तो आपको उससे ये अंदाजा हो जाएगा. अब आप पढ़ के आए केस, आपको पता है, आपको इतना अंदाजा हो जाएगा यार इन 3 जजेस के अंदर जो है ना, इस वाले बंदे को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ज्यादा आता है, इस वाले को जरा कम आता है, तीसरे को शायद पता ही नहीं, चुप करके सुनी जा रहा है, बस उसने पूछा भी. सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली रीड द माइंड ऑफ द जज एंड देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली. अब जब जिस बंदे को आईएक का नॉलेज है,
जिस बंदे को टेक्निकल नॉलेज है, उस बंदे को आप भूख नहीं बना सकते। ठीक है जी। अब वहां पे जो मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी ना, कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है कि यू डोंट नो नथिंग, सो यू हैव टू बी अ बिट वेरी केयरफुल कि भाई यार यहाँ पे नहीं करना, इसके साथ नहीं पंगा लेना, इसको पता है। लेकिन देयर आर समटाइम्स आपको समझ आती है, अच्छा यार चलो जी, एक पैनल बैठा हुआ है यार, इतना नहीं पता इंटरनेशनल मैनेटरी लॉ पर, ठीक है जी काम चल जाएगा। उसको आपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई से झूठ शाट मार दिया, आपने इधर से जो है ना कोई भी आपने escape रूट निकाला और आप जनाब सब करके अपना निकल गए सही। समझ आ गई बात की। पहली चीज तो इससे ये हुई, यू वुड रीड द माइंड ऑफ द जज। दूसरी चीज इससे क्या होती है, योर इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा। अब जब आपने उसको जवाब दे दिया, अब उस चीज का जवाब आपको आता है, जज को नहीं पता इसको आता है कि नहीं आता। जज के हिसाब से तो जज ने आपको फंसा लिया शुरू में, ठीक है जी। जब आप उसमें से escape कर गए, दैट इज वेयर, क्योंकि आपके मूड कोड के अगर आपको पता हो तो पॉइंट्स होते हैं, उसके ग्रिप ओवर लॉ के होते हैं, डेमनोर के होते हैं, ग्रिप ओवर फैक्ट के होते हैं, टाइम कीपिंग के होते हैं। तो जो ग्रिप ओवर लॉ है वो आपने कैसे बतानी है उसको, जब आप सारा दर 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 बोल दोगे तो ऑफ कोर्स वो सुनता है पढ़ता है, उसको नहीं। जब उसने पूछा और आपने उसको जवाब दिया, देन ही वुड अंडरस्टैंड, अच्छा यार ये जो है ना, दिस इज नाउ द पर्सन हु नोज समथिंग अबाउट द लॉ, फाइन, ठीक है जी। इसको इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है जी। दिस इज हाउ यू रीड द माइंड ऑफ द जज। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और आती है विच यू हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ, कि अच्छा इस ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्पीकर एंड हु इज गोइंग टू द सेकंड स्पीकर। और हमने इस बात के ऊपर बड़ी मार खाई थी, जिसके बाद हमने इसको सीखा था। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जी हमारा जो है ना, जो क्योंकि एक होता है, एक आपको आपस में पता होता है कि कोई बंदा, जाहिर सी बात है, यू नो एवरीबॉडी इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हम इस तरह भी होता है कि सीनियर जूनियर टीम बना रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है द वन हु इज द सीनियर, हु इज हैविंग कंसिडरेबली मोर नॉलेज एंड ही ऑफ कोर्स ही इज मोर एक्सपीरियंस, सो ही इज गोना बी अ बिट बेटर देन द अदर वन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्पीकर को पहले भेज देते हैं, ये पहला स्पीकर है, ये पहले जाएगा, तो शायद ये जाके ना वहाँ पे बड़े काम शाम कराएगा। हम ये चीज गौर ही नहीं करते कि असली चीज तो आती ही बाद में, ठीक है जी। जजेस को भी और सेट होने में टाइम लग रहा होता है। तो व्हाट वी लर्नड इज कि जो आपका जो कंसिडरेबली आपका बेहतर वाला स्पीकर है, जिसको आप बेहतर कंसिडर करते हो, कीप हिम ऑन द सेकंड रन, कीप हिम द सेकंड ओरलिस्ट। पहले स्पीकर जो कंपैरेटिवली वीक है उसको रखेंगे। वो क्यों रखेंगे वो मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा, जो आपका टीम वर्क वाला है ना उसके अंदर। सो पहला स्पीकर गया, एप्लीकेंट वाली साइड से गया, ही हैज टू सेट द मोशन, ठीक हो गया, उसने सेट किया मोशन को, यू गॉट टू नो द। जब आप रिस्पोंडेंट हो देन इट इज अ बिट इजी है, ठीक है जी, आप देख रहे हो। लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यू हैव टू बी सुपर विजिलेंट ड्यूरिंग द राउंड्स। आपकी विजिलेंस का ये हिसाब होना चाहिए कि सिर्फ ये ही नहीं आपको पता हो कि आपके साथ वाले ने क्या बात की थी या आपके जो ओपोनेंट ने क्या बात की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जज ने उससे क्या सवाल पूछे थे। अब जब आपने अपने राउंड में जाओगे ना, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिबट दोस थिंग्स ना इनडायरेक्टली। रिबटल राउंड के अंदर डायरेक्ट रिबटल करते हो, दूसरे में आप इनडायरेक्टली से उनको काउंटर करते हो, लेकिन आप जो है ना वो उस तरह से स्पेसिफिकली नहीं करते हो, नहीं तो वो रिबटल राउंड बन जाता है। आपने सिर्फ उसका जवाब नहीं देना जो कि एप्लीकेंट ने किया हुआ है, यू मस्ट हैव नोटेड डाउन द थिंग्स दैट वर आस्क्ड फ्रॉम हिम एंड ही एक्चुअली फंबल्ड इन अ बिट ना। यार मेरी वॉइस का इशू, मेरी बैंडविड्थ लो है या क्या चक्कर है? You are इस दिन audible at our side. I अगर think बाकियों को आ रही है तो फिर मेरी बैंडविड्थ तो ठीक है। some मुझे भी kind of बिल्कुल issue. सही है। ठीक है, कैन वी, I mean, I don't think so that it is an issue on my side. मतलब मेरी तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो बता देता होता है Zoom वाला। फाइन, ठीक है। तो आ रही है, हाँ ठीक है। If others are doing, I mean, you try just reconnecting your internet, मेरे ख्याल से आपके पास प्रॉब्लम होगा फिर। So, the thing is, अब जब हम कहाँ पे थे? तो आपने जो है ना करना क्या होता है बेसिकली, आप अब ये चीज होती है, ये इसको बोलते हैं बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन। आपकी इसी वजह से आई कंसिडर मूड्स टू बी अबव ऑल दी, यू नो, होते हैं ना जो ओरेटरी के कॉम्पिटिशन, इट इज ऑन द टॉप ऑफ इट। व्हाई? क्योंकि ये वो चीज है जो आप घर से तैयार करके सारी जा ही नहीं सकते। व्हेन यू वुड बी इन द मूड कोर्ट, आपकी लिटरली पहले दिन के आर्ग्यूमेंट्स और आपके अगर 4 राउंड्स हैं ना, तो चौथे दिन के जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आता है। व्हाई? कि आपकी हजार चीजें आपके ड्यूरिंग द राउंड चेंज होती है, आपके नए आर्ग्यूमेंट्स एडवांस होते हैं। सो यू हैव टू बी विजिलेंट एनफ कि आपको पता चला है कि जनाब साहब जो है ना, जज ने ये सवाल किया था, अब उस सवाल का जवाब आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में रख के देना है कि इसने इस बात की जवाब नहीं दिया था सही से।
या इसने इसका गलत जवाब दिया था। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप जब गए हो आपने झूठ बोल दिया, इस झूठ को जो आपके ओपोनेंट ने बोला वो आपने पकड़ना है फ्रॉम द सेकंड साइड। तो सेकंड साइड इसलिए थोड़ी सी आसान भी होती है। सो व्हाट यू वुड डू इज कि भाई आप उसको पकड़ोगे और अब ये आपकी उसके अंदर जो है ना, दिस इज व्हाट ऑल ओरल रीडिंग्स आर अबाउट, कि अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर फिर आप उसको किस तरीके से स्लिप इन करते हो अपने आर्गुमेंट्स के अंदर, कि ये भी ना लगे कि मैंने बदतमीजी की, ये भी ना लगे और आपने तरीके से मलबा डाल दिया दूसरी साइड के ऊपर, ताकि जज उसकी तरफ हो जाए कि अच्छा भाईजान, हाँ जी तो बताओ ना, ये तो आपने ये बात की है, वो ये बात करके क्या प्रूव इट। फाइन। So when you are the applicant, you have to set the stage. The second speaker would come on the second, the first speaker would go first. Keep your arguments a bit open-ended. इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि arguments इतने open-ended, क्योंकि you cannot know better law than the judge. ठीक है? इतना open-ended ना रख देना कि वो पहले argument में ही फंसा के रखते हैं आपको. Just keep it open-ended to the extent you can cover it up deliberately. Invite a sort of a question that, okay, fine, ask me this. ठीक है जी। अब उसकी वर्डिंग्स चूज करना, अब वही वाली बात है कि इतना टाइम भी शायद नहीं है और वो भी नहीं है कि उसका, दैट इज क्वाइट अ टेक्निकल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड आई कोच पीपल, लिटरली टेक्स मी वीक्स और मंथ्स टू जस्ट लेट देम नो कि यार अच्छा अगर तुम ये आर्गुमेंट कर रहे हो, जब वो मेरे साथ ओरल रीडिंग्स पे आते हैं, देन आई टेल देम ओके फाइन, जस्ट रीफ्रेज इट। सो एवरी सिंगल वर्ड मैटर्स। तो वो आपने तरीके से किस तरह से करना होता है, यू बेटर जस्ट अटेंड सम मोर वर्कशॉप्स ऑन इट, और यू बेटर स्टार्ट गोइंग टू द मूव कोर्स, यू विल कम टू नो। ठीक है जी, आप अपने एक्सपीरियंस मूवर से सीखोगे, आप कर करके ये चीज सीख सकते हो, या फिर यू बेटर हायर सम गुड कोच, सो ही इज गोना लाइक टेल यू दैट। एनीवेज, so you have to be like this, छोटा सा open ended question जो है बहुत टेक्निकल भी नहीं, ताकि आपसे क्वेश्चन हो, you invite that, the second speaker would go, and this is how you would go from the applicant side or the side who has to present it first. And when you're going to the respondent, then you have to cater for the things that which actually was spoken by the applicant side, and the questions that were asked. Even being a second speaker, it is your responsibility that ये भी मैं अभी टीम वर्क में बात करूंगा कि you just note down what your first speaker is saying and what is being asked from him. तो उससे क्या होगा कि there are instances there I have seen myself where the first speaker actually could not answer them out. The second speaker went, he answered those. He actually noted them down on a piece of paper. He presented. He actually, he mentioned that okay, fine, these were the things which actually remained. ये fill in the gaps मैंने आगे भी किया हुआ भी है. So this is how I'm going to answer it. And the person was the best advocate of that Newport competition. So this is the level of it. I mean, he was so much praised, he was so much liked for this act of him. So this is how it is going to be like. Okay. So you have to be very much vigilant. You have to be very much into the Newport competition. Focus. Vigilant होने के बाद. Know the judge. ठीक है जी. जज क्या पूछ रहा है, जज पूछना क्या चाह रहा है, जज का कैलिबर क्या है, जज का माइंडसेट क्या है। अब इसमें वही एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज ये भी है कि आई हैव सीन, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का थोड़ा सा जो है ना वो इम्प्रूव होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ स्टिल आई मीन आई विल अगेन गिव द क्रेडिट टू एहसन खान साहब, इस तरह के जो लोग हैं ये थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं चीजों को, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अदरवाइज आई हैव सीन पीपल जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश एंड ऑल। तो अगर उस तरह का कोई चक्कर आता है तो इम्प्रोवाइज इट अकॉर्डिंगली, तो फिर कोशिश करो कि यार थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसको भी इम्प्रेस करना है। ठीक है जी। सो वो तभी होगा जब आपको पता चलेगा जी जज किस तरह का है। अब जज के किस तरह पता चलता है कि वो जज साहब को अगर थोड़ी कोई एक्सेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, वोकैबुलरी उठा के ला रहे हैं, इसका मतलब कि जज साहब इज अ बिट फोकस्ड अबाउट अंग्रेजी, तो उसको थोड़ा सा फिर अंग्रेजी में सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। बट नॉर्मली इट डजंट हैपन। I mean, or just one or two instances I have seen in my like moving career, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके पे जो है ना ज्यादा पैनल बैठा है तो दो तीन, तो बाकी दो को तो इम्प्रेस करेगा। ओके, सो गेटिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नो द जज। नाउ द सेकंड थिंग, आप इसी सीक्वेंस में, आई एम रीइटरेटिंग ऑन इट, ये इसी सीक्वेंस में जाएगा। सबसे पहले जज को पकड़ो, नो द लॉ। अब लॉ क्या चीज है, जो मैंने बात देखी, एक्स्ट्रा रिसर्च। अच्छा, अब इसमें चक्कर ये है, देखो केस सेम है, 100 बंदा तैयार कर रहा है। अब उसकी जो मेजर एक स्केलेटन है, उसका जो मेजर एक जो है ना वो केस की, वो दैट इज ऑफ कोर्स विद एवरीवन, योर आर्गुमेंट्स आर मोर और लेस द सेम। ठीक है जी, सिर्फ अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं। तुमने शायद आईसीजे का केस लाए हो, अगर इंटरनेशनल का केस है, वो शायद आईसीसी का ले गया हो, इतना को फर्क होगा, बातें सारी सेम होती है। Where you have to create the difference.
अब ये वो चीज है जहां पे जब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इट डज नॉट एट ऑल मीन इफ यू आर अ स्पीकर यू जस्ट आर गोना लाइक यू वुड बी जस्ट सिटिंग लाइक टांग पे टांग रख के तुम बैठे हुए हो और जो रिसर्चर तुम्हें ला के दे जाएगा और तुम बोल दोगे नो नॉट एट ऑल. At the same time, when the researcher is researching on something, you need to have your own arguments researched, drafted by yourself. अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद से लिखोगे, अपनी रिसर्च खुद से करोगे तो उसको उस तरीके से डिलीवर कर पाओगे जो तुम कहना चाह रहे हो. तुम एतजाज एहसन साहब से भी लिखवा लो ना आर्ग्यूमेंट्स, तुम नहीं बोल सकते, वो एतजाज एहसन साहब भी बोल सकते हैं. लेकिन अगर तुम अपने आर्ग्यूमेंट खुद बोलोगे ना और तुम्हारे आर्ग्यूमेंट एतजाज एहसन साहब बोलोगे, वो तुम उनसे बेहतर बोलोगे. क्यों? क्योंकि उसमें तुमने अपना दिमाग लगाया, तुम्हें पता है इसकी सेंस मैंने क्या बनाना. आई मीन इसमें देन अगेन आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल कि मतलब देयर वाज अ केस के मेरे साथ ही हुआ था असल में. तो आई एक्चुअली फॉरगॉट माय मेमोरियल बैक इन द होटल और द फाइनल वाज देयर. ये बहरिया का फाइनल था और आई मीन बेसिकली हुआ इस तरीके से था कि द सेमीफाइनल वाज सो टफ कि वो पूरी रात हम सेमीफाइनल नेगेट करते रहे और रिस्पोंडेंट साइड वी हैड टू डिफेंड. और जो है उसके अंदर जो है ना हमने उसकी इतनी तैयारी की कि एप्लीकेंट साइड हम भूल गए कि हमें एप्लीकेंट भी मिल सकता फाइनल के अंदर. तो वो कर आके रिस्पोंडेंट तो वी कुड मैनेज टू विन. बट एट द एंड ऑफ इट 15 मिनट बाद फाइनल है, सेमीफाइनल के एग्जैक्ट 15 मिनट बाद फाइनल है. एंड हम टॉस जीते और अपने अपने हाथों से हमने मतलब लाइक वी आवरसेल्व्स डिसाइडेड कि वी आर गोना गो एप्लीकेंट, क्योंकि हमें कुछ पता चला था कि यार एप्लीकेंट हमारा बेहतर है ना. जब हम एप्लीकेंट के बाद में मुझे पता चला कि भाईजान मैं मेरा जो एंड आई वाज लाइक सो नाइव, आई वाज एंड नाइव एनफ कि आई वाज आस्किंग माय कोच सर मेरा एप्लीकेंट साइड लेके आए. तो ही वाज लाइक यार मैंने लाना था. एंड इट वाज इन द होटल, वी कुड नॉट गो बैक, वी हैड नथिंग विद अस. तो अब उसमें अब हुआ क्या कि माय कोच व्हाट ही स्टार्टेड टू डू, ऑफ कोर्स उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा, ही द मूटर, ही हैज गॉट लाइक बंडल ऑफ अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट पोर्टफोलियो एंड ऑल. सर मुझे लिख के दे रहे हैं कि ये कर ले. अब द थिंग इज मैंने एक पेज उठाया, मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे नहीं समझ आया, ऊपर से गुजर गई. उनका एक्यूमेन इतना ज्यादा है, उनकी लीगल सेंस इतनी अच्छी हो चुकी है ये कर करके, मुझे पता ही कुछ नहीं ये हो क्या रहा है. व्हाट आई सिंपली डिड इज मैंने कहा सर जी अल्लाह खैर करेगा. मैंने उसको साइड पे रखा, आई जस्ट पिक्ड अप वन बुक. जाहिर सी बात है थ्रू आउट पूरा मूड कोट करके आए हुए थे, कुछ ना कुछ तो ज़हन में था ही. अपने आर्गुमेंट्स जो थे ना उन्हीं को बनाया, एक किताब पकड़ी, आई वेंट ऑन द पोडियम. God was like graceful enough. I mean we just managed to win, not only win but best advocate भी उठा ले वहां से. तो the thing was जबकि मेरे आर्ग्यूमेंट्स दे अगर आप उनका लेवल कंसिडर करें तो वो सर जो मेरे सर हुसैन है, आई वुड लाइक टू नेम, तो उनके तो लेवल बिल्कुल भी नहीं थे. बट द थिंग वाज आई कुड नॉट डिलीवर देम एनीवे because they were not researched by me, they were not thought by my own mind. So what I did is I went with my own mind. मैंने कहा भाई जो कुछ भी होगा देखी जाएगी, इतना तो पता है कि केस क्या है, ठीक है, इतना तो. अब ये उसमें फिर दोबारा वही चीजें सारी आपकी आ जाती है. यू हैव टू बी असर्टिव, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपने नर्व्स अपनी कंट्रोल रखनी है. कोई इस तरह का इंसिडेंट अगर हो भी गया देन व्हाट, कोई मसला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हार जाएंगे ना. लेकिन आपने यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू जस्ट पुट इन योर एवरीथिंग. आप जब दे रहे हो डिलीवर इट जो है ना विद द शीयर कॉन्फिडेंस. हाँ मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ. एंड लिटरली वी कुड डू इट. आई मीन मुझे अभी भी याद है कि ही वाज आस्किंग मी द क्वेश्चंस, तो ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ लिखा हुआ तो था नहीं. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अब ये इम्प्रोवाइजेशन है आपकी वहां पे, कि मैं उनको क्या कहता था, मैं कहता यस इंडीड योर एक्सीलेंसी. इस तरह क्या है कि मैं उनको थोड़ा सा उनसे टाइम बोरो करता था. किस तरह करता था, आई यूज्ड टू पोर्ट्रे एज इफ समथिंग इज रिटन इन माय मेमोरियल व्हिच वाज नेवर देयर. और आई जस्ट स्टार्टेड जस्ट टर्निंग द पेजेस. इन द मीनवाइल आई वाज जस्ट 5 से 10 सेकंड का टाइम ले लिया उसमें. ये कि आई वुड थिंक आउट ऑफ यार अच्छा ये इसका आंसर देना है, और उसको शो ये कर रहे हैं कि शायद कुछ नीचे लिखा हुआ है, एंड जस्ट सिंपली जस्ट लुक डाउन एंड देन ओके सर द आंसर टू दिस सिंपल इज दैट. सो बेसिक द थिंग इज नो दैट लॉ, और उसके अंदर एक्स्ट्रा रिसर्च, फाइंड आउट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, डू नॉट राइट देम इन द मेमोरियल, just keep them somewhere along with you in your mind on a piece of paper somewhere else. They are gonna back you up when the things would be in a deadlock. That is where you basically create that the difference. ठीक है जी. अब लॉ उसका भी सेम है, लॉ आपका भी सेम है. where you are gonna get the difference, आप कोई इस तरह की बात उसमें से उठा के ले आते हो, let's suppose, जो कि हो सकता है थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जरूर हो, लेकिन वो एक जैसे कह सकते हैं ना कि बहुत ही नॉलेजेबल किस्म की बात हो. लेट्स सपोज
आपके पास जनाब जो है ना कोई इस तरह का सीन आया कि यस, इंटरनेशनल लॉ का केस है, ठीक है जी, आप इंटरनेशनल लॉ के केस पे चले जाते हो। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात होती है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इन जनरल। अब क्योंकि ऑफ कोर्स जब मूव कोर्ट्स होते हैं तो वो आपको इतनी डेप्थ में उसकी नहीं लेके जाते हैं। अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इन जनरल तकरीबन हर बंदे को पता होगा। आप वहां पे क्या करते हो, आप उसमें एक एडिशनल पॉइंट उठा के ले आते हो, आप कहते हो कि रीजनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अब ये इस तरह की कोई चीज होगी जो कि बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, और बहुत से लोग उसको फॉरगो कर जाते हैं, ठीक है। अब जब अब हुआ क्या कि अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप पहुँचते हो प्रिलिमिनरी से आगे तो हर कोई आपके लेवल का होता है। वहाँ पे आपको ये चीज़ें फिर करनी पड़ती है। आप वहाँ पे क्या करोगे? आप वहाँ पे इस तरह के एक्स्ट्रा पॉइंट्स थ्रो करोगे। आप अपनी लॉ की एक्स्ट्रा रिसर्च उसको फेंकोगे। आप कहोगे कि जनाब साहब जो है हमने जी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात की, साथ वाली टीम क्लेम कर रही है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, लेकिन हम भी बात कर रहे हैं कि जनाब जो है ना कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को नेगेट करने के, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को रिस्ट्रिक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसके अंदर एक चीज आती है जी रीजनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो अब जो इस जो जो ये रीजन बेसिकली आता है, उसके अगर हम परजूएंस में इसको देखते हैं तो ये जनाब साहब एक चीज है दैट इज क्वाइट नेगेटेबल। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा लॉ, ठीक है जी। यू हैव टू नो द लॉ better than anyone else. When you are researching on a law, go to the bones of it. इसके ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं आ जाना। आपको लेट्स सपोज एक आपको आता है कि जी आप जेनेवा कन्वेंशन पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम उसको फ्रेंच वर्ड है, उसकी एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो वी कॉल देम ट्रेवा प्रेपोटोयर्स, ठीक है जी। वो होता है उसका पेपर वर्क। अब एक लॉ अगर आपने पढ़ा, एक ट्रीटी बन गई, लेकिन ट्रीटी बनी कैसे, वो उसके अंदर लिखा होता है। रीड देम आउट एज वेल। आप उसका बैकग्राउंड उठा के लाओ, ये हुआ क्यों था? ये बना किस तरीके से था? अब अगर किसी ने थोड़ा-सा पढ़ा हुआ वो ड्राफ्ट आर्टिकल्स और ऑन द स्टेट रिस्पांसिबिलिटी जो है आपके, तो अब वो अभी तक एक कन्वेंशन नहीं बने, लेकिन कस्टमरली दे आर सो मच बाइंडिंग कि आप उसको हर जगह पे कोट करते हो। तो आप उसके एक-एक अगर उसकी कमेंट्री में आप चले जाओ, उसके एक-एक आर्टिकल को देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किधर से इन्होंने एक चीज़ को उठाया, कितना किया, उसके ऊपर क्या डेलिब्रेशंस हुई। आई मीन इतनी डेप्थ में जा चले जाओ कि अच्छा जी इस स्टेट ने ये स्टांस दिया था, इस स्टेट ने ये स्टांस दिया था। तो जब इसके ऊपर लेट्स सपोज यू आर नेगेटिंग अ पॉइंट, वो एक बात करता है कि जनाब साहब जो है ना यार ये तो जो है ना कस्टमरली एक्सेप्टेड है। तुम कहो ये अगर कस्टमरली एक्सेप्टेड भी है, ये वीक है। क्यों वीक है? इसमें इतनी स्टेट्स इसके अगेंस्ट भी थी। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा व्हेन यू वुड रिसर्च इट लाइक दिस? ये कहीं पे नहीं लिखा होगा। आपको एक आईसीएससीआर बन के तो आ गया। अब जो जिसने ऊपर-ऊपर से आईसीएससीआर पढ़ लिया, वो अप्लाई हो गया, वो आपने भी पढ़ा हुआ था। लेकिन आईसीएससीआर के ऊपर कितना पड़ा हुआ था, आईसीएससीआर को कितनों ने नेगेट किया था, कितनी स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया, ये आप जो लेके आओगे दैट इज गोना मेक द डिफरेंस। दैट इज वेयर यू वुड विन और लूज इट। तो इसी तरह की जो चीजें होती हैं जो आपको ऊपर के राउंड्स के अंदर फिर वो जो है ना वो करती हैं। ये फिर देन अगेन आई वुड रिवर्ट टू द क्रिकेट। क्रिकेट आजकल छाई हुई है, टी20 वर्ल्ड कप हुआ है भाई। वो अब उससे स्ट्रेट पे छक्का नहीं लगा, वेट से उसने पीछे के दो छक्के मार दी। यू हैव टू चेंज योर पोज, यू हैव टू चेंज योर थिंग। आपको इस तरह की चीज एक्स्ट्रा उठा के ले आओ जो कि अगला बंदा जो आपके साथ क्वेश्चनिंग कर रहा है, जो बंदा आपको अपोज कर रहा है, उसने सोची भी ना हो, आप उसके साथ वो हरकत कर समझ आई। सो दिस इज हाउ यू हैव टू नो द लॉ। जस्ट रूट्स ऑफ इट, डेप्थ ऑफ इट, एवरीथिंग अराउंड। कल वो परसों मेरा ख्याल था, इट वाज ऑन द लाइक लीगल रिसर्च पे जो था उम्मे इमन का, इट वाज लाइक आई मीन आई वाज एक्चुअली लिसनिंग टू इट। सो आई मीन इट वाज इक्वली वेरी वेल। तो वो उसकी वो जो टिप्स हैं वो यहाँ पे आपको काम आएंगी। जो आपने वो रिसर्च उसने आपको बताया कि आपने करनी किस तरीके से है, दिस इज वेयर यू आर गोना लाइक यू नो लव दैट लेक्चर इफ यू हैव टेकन इट सीरियसली। कि आपको पता चलेगा कि यस आई मीन व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। Having said that, moving on the next slide, that is the know the fact. Yaar, am I taking too much? Like बहुत टाइम तो नहीं हो गया? It's up to you. You have the floor now. वो I mean fine with me, like ये ना हो कि वो लोग तंग आ जाएंगे बहुत ही बोलता है। वो फिर ऑडियंस पर डिपेंड करता है। हाँ चलो, ये देखो अजहर अली साहब। हाँ भी अजहर लंबा हो गया ज्यादा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आ गई फैक्ट की बात।
चलो, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, पीपल आर हैप्पी ना, बस फिट हो गया। चलो, आई हैव नो इश्यूज, मतलब ठीक है, आई हैव अ लॉट टू स्पीक। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नो द फैक्ट की बात हो रही है अब। फैक्ट बेसिकली ये चीज है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है, जज से लॉ पे पंगा नहीं लेना। जो लॉ है ना, दैट इज द थिंग व्हिच द जज नोज अ लॉट मोर देन यू। उससे उसके ऊपर नहीं कभी भी पंगा लेना। अगर जज आया और जो है ना, आप मतलब लोग करते हैं कोशिश, मैंने वही पहली बात आपको बताई थी कि दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि सीक्वेंस वही रखना है कि नो द जज, नाउ यू नो द जज, बट स्टिल अब ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी ने जज बुला लिया, तो ये तो नहीं कि वो कहीं बाहर टमाटर लगा रहा है तो जज बुला है, वो जाहिर सी बात है वो जज किसी वजह से ही। तो अगर उसको एक साइड नहीं आती, आपने वहां कवर अप कर ली, दैट डज नॉट एट ऑल मीन तो लॉ में मिनिमम पंगा लेना जज से, क्योंकि यू कैन नॉट mislead him. I mean, like, you know, too much of an extent. ठीक है कि थोड़ा बहुत आपने घुमा फिरा लिया, of course law is just like sea, आप बहुत बड़ा समंदर होता है, उसमें शायद आपको ऐसी एक दो बात कर दो, जज मान ले, लेकिन आप हर बात ऐसी कर दोगे तो जज भी समझ जाएगा कि भाईजान ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी वहीं से होके गुजरा है। But this fact thing, the hypothetical case you haven't had is the thing which you know more than a judge. यहाँ पे आपके पास एज होता है। वो कैसे होता है कि ऑफ कोर्स, अब जैसे मैं अगर हूँ अभी, आज मुझे कहता है कोई कि एडजुडिकेट कर लो, अब मेरा केस नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मुझे किसी ने अगर 2 महीने पहले भी कहा है ना, मैंने उसको बहुत हो गया तो एक रात पहले पढ़ लूंगा या 2 रातें पहले पढ़ लूंगा और सरसरी से पढ़ के मैं चला जाऊँ ना। मेरे पास टाइम है, ऑफ कोर्स मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसमें इतनी रिसर्च करके जाऊँ जितनी रिसर्च उसमें आपने की भी है। तो लिहाजा दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन एक्चुअली escape your way out जब आप फंस गए। तो फैक्ट के ऊपर ग्रेप वही, देन आई मीन आई वुड अगेन लाइक टू रीइटरेट ऑन द लेक्चर ऑफ एमन, जिसमें उसने बात की थी कि एक दफा नहीं पढ़ा, 2 दफा नहीं पढ़ो, 3 दफा नहीं, जितना आप मर्जी पढ़ोगे उतनी दफा नई चीजें निकलती हैं। जो आपका केस फैक्ट होती है, जो आपकी केस शीट होती है, उसको घोल के पी जाओ, घोल के पी जाओ इन मतलब आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि यू रियली गुड, लाइक यू नो, आपने जब रेफर करना है ना, तो आपको आपका ये केस शीट खोलने की जरूरत नहीं पड़े। you simply must be capable of directing the judge के भाई फलाने पैराग्राफ के ऊपर, फलानी लाइन नंबर के ऊपर देखें सर ये बात लिखी है। This is the level of preparation that is required to be there. Like अगर आप कहते हो कि मैं prepared हूँ, अगर आपको facts अजबर है, क्योंकि facts का क्या सीन है कि facts जज को इतने अच्छे नहीं आते, you can mold them, you can twist them. हैव बीन केसेस इसी तरह का सीन होता है, जज कहता है, जज लॉ उठा के ले आता है, जज कहता है सर जनाब सब ये मेरी बात जो है ना, इस लॉ में तो ये लिखी हुई तुमने गलत बात की, तुमको सर जी फैक्ट डिफरेंट है, फैक्ट तो कहते हैं कुछ और, फैक्ट घुमा दो, लॉ नहीं घुमा सकते। ठीक है, वो उसको पता है, वो पढ़ के है, उसने पढ़ा, सारी जिंदगी उसने यही। फैक्ट वो चीज है जो उसको नहीं आती, तो इस जगह के ऊपर दैट इज वेयर यू हैव द एज व्हेन यू आर कंपेयर्ड विद द जज। हाउएवर एट द सेम टाइम योर ओपोनेंट इज एक्चुअली नोटिंग यू डाउन। अब इसमें यही वाली बात आती है फिर कि व्हेन यू आर द ओपोनेंट और आपका ओपोनेंट ही हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो यू इट इज योर ड्यूटी नाउ कि यू हैव टू जस्ट लीड द जज कि सर जी ये इसमें ये बात जो थी, दिस इज नॉट लाइक दिस, इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक दिस। Know the fact, this is the area, this is your court, this is where you can play the best. So if you have to like mislead him, or if you have to take an advantage of something, then take it from here. So would it be possible when you are so much firm, when you are so much assertive on it, when you have so much of the grip on it, that okay fine, this is the fact and this is how it has been. I mean, अब देखो, even जब आप case law भी present करते हो, तो you must be knowing the facts of the case law. तो उसके फैक्ट्स को आप चेंज करते हो। आई मीन आपके जो सबसे बड़ा जो आपका वेपन होता है एक रिबटल के अंदर, वो होता ही ये है कि अगर एक बंदे ने केस लॉ प्रेजेंट किया, आप जाके कहो कि यार इन्होंने इस फैक्ट के ऊपर ये कैसे केस लॉ लगा दिया, ये तो फैक्ट ही कुछ और, इसे तो आग लगी थी, इधर सैलाब आया है, तो ये कैसे आ गया। समझ आई बात की? So know that fact. So these 3 points, they must be always there in your mind when you're going there, and you have to just get the hold of your performance with this. First of all, know thy judge, put some questions,
bring some sort of a slightly open-ended sort of an argument. Okay, fine. Get to know his, like, mentality, what sort of a person he is, what sort of acumen he has got, how much technical can he be. Secondly, know the law to the bones of it. आपको उसकी रूट्स पता हो, आपको उसके बैकग्राउंड का पता हो, आपके उसके फैक्ट्स का पता हो, एंड देन लास्टली नो दैट फैक्ट, नो योर फैक्ट्स so well that you can simply mark them up and vomit it somewhere. This must be the level of preparation in your own. Next slide, please. This thing. आप लोग अगर मेरी प्रेजेंटेशन देखो तो सिर्फ एक हेडलाइन मैंने रखी हुई है और उसके साथ मैंने नीचे उसकी बुलेटिन की हुई है, जो कि सिर्फ मेरे की पॉइंट्स हैं, बाकी मैंने खुद बोलना होता है, क्योंकि उसके इससे क्या होता है कि मैं खुद सोच सकता हूँ। जब मैं ये सोचूंगा कि जनाब साहब वही वाली एग्जांपल देन अगेन कि वो फाइनल का वो होता, मैं पेपर्स मेरे घूम गए थे, अगर मैंने पेपर्स पे रिलाय किया होता तो मैंने पोडियम पे 2 लफ्ज भी नहीं बोलने थे, मैं सॉरी करके पीछे बैठ गया होता। लेकिन चक्कर क्या है कि यूज योर ओन माइंड, और देन अगेन आई वुड लाइक टू से कि all of these slides, all these points, they are correlated, एक से दूसरा कनेक्टेड है। जब आपने अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, आपका दिमाग सोच रहा था, जब आप सोच सकते हो तो आपको फिर कागजों की, और लिटरली यू वुड फील इट। जब आपके नीचे कागज पड़े होते हैं ना, आपका सोचने का दिल नहीं करता कि चल मैं इसको ही देखता हूँ, और इवन यू गेट मोर कंफ्यूज। क्यों? आप एक पल टूट, यार ये बात नहीं, यार ये बात नहीं है। सो द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल इट इज simply go with a piece of paper with some major points on it, और बाकी सारे जो आपके की लॉज हैं वो सारे कुछ उनको साइड पे रख के उन पे टैग लगा के रख लो। मेमोरियल वगैरह क्योंकि जजेस कभी भी सवाल कर लेते हैं, इट मस्ट बी देयर ऑन द पोडियम, बट यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन इट। यू आर स्पीकिंग योरसेल्फ आउट, नॉट द मेमोरियल आउट। ये बात याद रखनी है कि मेमोरियल में ठीक है बातें वही लिखी है जो आपने बोलनी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि मेमोरियल की सबमिशन हमेशा पहले हो जाती है, तो आप जो मेमोरियल सबमिट करने के बाद रिसर्च करते हो ज्यादातर तो कोई रिसर्च काम आती है। लेकिन स्टिल यू हैव टू, ऑफ कोर्स मेजर जो क्रैक्स है आपका वो तो आपका ज़ाहिर मेमोरियल ही है, लेकिन यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन इट। यू जस्ट हैव टू डू व्हाट आपने आप चिट पकड़ी, जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन है, ये इसी को जिस तरह मैं प्रिंट आउट अगर कर लेता एंड आई वुड बी कैरिंग इट अलोंग, अगर मेरे पास ये स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन ना होता, तो व्हाट आई वुड बी डूइंग है कि मैं जनाब साहब ये केस पे ये पढ़ा, मैंने कहा अच्छा जी मेरी नेक्स्ट स्टडी ये, सो आई हैव टू टॉक अबाउट इट, सिंपल इज दैट। सो टॉक योरसेल्फ आउट। उसमें क्या होता है, क्योंकि आप तैयारी करके आए हो, जब आप पेपरों के ऊपर रिलाय करना शुरू कर देते हो तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ रहे होते हो, आप फिर सोच नहीं रहे होते, और फिर होता क्या है कि आपसे एक सवाल आया जो आपके पेपरों में नहीं था, और आप वहां पे फिर लिटरली यू जस्ट फंबल, यू जस्ट लिटरली स्टटर, यू जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। So simply use your own mind. Do not rely on a piece of paper, like on a memorial or something. At max, मतलब अगर मेमोरी of course इतनी अच्छी मेमोरी हो भी नहीं सकती है, आपने और कुछ करना होता है, तो सिर्फ सिंपल मेन पॉइंट्स आपने अपने रखने होते हैं। May it be a sticky note, may it be something else. I mean, when we used to do the debates and declamations, what we used to do is we used to write down the points on our fingers, so that when उसमें gestures allowed होते हैं, so when we are doing this like this, तो उसमें होता क्या था कि वो it gives an impression that we are not doing the paper reading, but it is like written over there somewhere like this. तो हम उसके ऊपर नजर मार लेते हैं, तो हमें आता अच्छा जी अगला पॉइंट मैंने ये बोलना था, so this is how you basically keep on refreshing your memory, yet not giving an impression that you are actually reading it out from somewhere else, और उसका एक impression अपना ही अलग होता है। उसमें फिर आपकी आई कांटेक्ट की बात आ जाती है, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब लिटरली मैंने इस तरह के लोग देखे हैं कि वो, अब ठीक है उनकी तैयारी बहुत अच्छी, उनकी रिसर्च आउटस्टैंडिंग है, जो मैं आपको सेमीफाइनल का बता रहा था, उनकी रिसर्च इतनी अच्छी थी कि उनके मेमोरियल ने मैं रात को सोने नहीं दिया था, क्योंकि हमने बोलते हुए तो सुना नहीं था मेमोरियल वर विद अस अ नाइट बिफोर। तो वो हम 4 बजे तक सोए नहीं थे उस मेमोरियल को नेगेट करते करते, इट वाज सो गुड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी कुड विन इट ओरली। हम ओरल्स में हमको कर गए, किसी तरीके से आउट क्लास, शायद हमने तैयारी अच्छी कर ली है, कुछ कर लिया था, लेकिन ज्यादा उसमें बात यही थी कि दे वर टोटली रिलाइंग ऑन देयर मेमोरियल। कोई बात हो रही है तो वो जनाब सब 10 सेकंड लगा के सफा पलट रहे हैं, फिर उसमें से पढ़ रहे हैं। दिस गिव्स सच अ बैड इंप्रेशन कि आप पढ़ के नहीं आए हो, शायद मैं लिख के ले आए। तो दिस इज नॉट, आई मीन अगर आई मीन आई वुड लाइक टू नेम हर, देयर इज अ पर्सन लाइक मैम सादिया ज़हूर, आई लिटरली हैव सीन पीपल क्राइंग आउट ऑफ हर कोर्ट। वो बंदी इस तरह की है कि वो रुला देती है, वो लिटरली बंदे रुला के देती है लोगों को। और she was the one, उसने एक बंदी को पकड़ा, and she was like, is it a declamation going on, is it a presentation going on, what the hell are you doing? She was like, these were the literally words of her,
अब आप सोचो ये ड्यूरिंग राउंड में अगर आपके साथ ये चीज हो जाए तो आपके वैसे ही आधे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस जीरो हो गया ना। तो बेसिकली चीज ये होती है कि यू हैव टू बी लाइक यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ मुझे आता है, मैं किसी से देख के नहीं पढ़ रहा हूँ उसको। देन कम्स द इम्प्रोवाइजेशन थिंग। इम्प्रोवाइजेशन का वही वाली बात होती है, then again it is connected with the same like you know first slide, second and third slide के आपने वहां पे खड़े होके then जब आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, you have that capability, you have that capacity, you are in that form now कि yes I can improvise, I can like you know। तो अब आपको पता है मेरा मेजर केस ये है। आई मीन लिटरली इस तरह के सीन हो जाते हैं, लोग पेपरों में इतने घुमे होते हैं कि वो एप्लीकेंट खड़े हुए रिस्पोंडेंट बोल के चले जाते हैं। मैंने इस तरह के केसेस भी देखे हुए हैं। तो उसका भी यही हाल होता है कि जब अपना दिमाग नहीं चल रहा तो फिर यही होगा, जाहिर सी बात है। तो नीचे कोई बात नहीं मिल रही, ऊपर से काम पे कि यार देर लग रही है, टाइम भी जा रहा है, टक टक वो जनाब तो इधर से उधर उधर। तो लिहाजा जरूरत ही नहीं है पेपरों पे रिलाय करने की, अपनी तैयारी को इस तरह से रखो, पॉइंट बना के जो इम्प्रोवाइज करो। अब जज ने कोई चीज पूछी है, हर चीज तुम्हारे पास लिखी भी हो भी नहीं सकती, तुम जितने मर्जी जो है ना वहाँ बंदा जो है ना रिसर्च करके चला जाए, कुछ चीजें होती हैं जो अपने दिमाग से वहाँ पे जवाब देना होता है। जिस तरह के एक केस हो गया कि देन अगेन हैंडी डूना था, उसमें ये हुआ कि मैंने कभी इस बात पे रिसर्च नहीं की थी। देयर वाज अ पॉइंट के जिसके अंदर वही वाली बात, देन फैक्ट्स मेरे हाथ में थे, मुझे इतना पता था कि मैंने फैक्ट्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। देयर केम अ पॉइंट, इट वाज द लास्ट राउंड अगेन। तो उसमें जो है ना शी वाज पे ऑन शी इज फ्रॉम मलेशिया बेसिकली, आईटीएस चीजें हैं। सो शी आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक, अब वो आई वाज ऑफ द लाइक डिफेंस साइड, और थोड़ा आइडिया अगर वो आईसीसी का या जो है क्रिमिनल लॉ में तो कोर्ट जो है ना वो आपने बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो आपने देना ही होता है। So what she did is she was like, okay, you did this, you did this, you did this. Now, I mean, there was like you know quite much of tell, okay, we apprehension की बंदा ये कर सकता है. Yet it was not conclusive, of course. So वहाँ पे मैंने what I simply did is I knew the fact. So what I did is मैंने कहा यार इसका जवाब तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो लिहाजा इसको करना क्या है। What I did is I simply said, okay, fine, and you might be very right, but there is another possibility to the same very fact, and that can be this, which creates a doubt, and hence the doubt would go to my client. Simple, because I'm the defense side. No, this is like you know, अब आपको पता है मैं डिफेंस साइड पे हूँ, हाँ अगर मैं दूसरी साइड पे होता शायद मुझे कुछ और जवाब देना पड़ता, लेकिन अब मैं जब इस साइड पे था तो आई लिटरली ब्रॉट हर टू अ पॉइंट कि वो बंदी मतलब शी जस्ट यू नो लेड बैक ऑन द सीट, शी वाज लाइक दिस आर्टिकल जो आपका है ना आर्टिकल 66 है आपका आईसीसी का, वो है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट ना, आईसीसी का केस होता है। तो शी वाज लाइक यार दिस आर्टिकल 66 it is not gonna let the prosecution win at all, and literally we won it. So this is how you have to improvise. आप क्या कर रहे हो कि जनाब साहब आपने जनाब वो जो है ना उधर आपको एक पॉइंट समझ में आया, आपने कहा यार ये बात मैंने नहीं, और लिटरली मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी कि कुछ नहीं किया था, सिर्फ मुझे ये पता है कि आर्टिकल 66 ये बात करता है, तो दिमाग ने काम कर दिया, बाकी तो जाहिर है जो है ना जो भी है। तो बस मैंने कहा कि जनाब से मैं डाउट क्रिएट कर देता। तो लिहाजा यू डोंट हैव टू गो विद सम कह लो कि जी पैटर्न सम सॉर्ट ऑफ लगे बंदे आर्गुमेंट्स। जो आपका अच्छा जज होता है ना, आई मीन व्हेन आई एम द जज, मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, मैं एक बंदे का स्ट्रक्चर हिलाता हूँ। सबसे पहले वो जाएगा ना, लेट्स सपोज ही हैज कम टू लाइक यू नो स्पीक ऑन द फर्स्ट टू इश्यूज ना, तो ऑफ कोर्स अब उसका सीक्वेंस क्या है जी, उसने पहले से पहले पे पढ़ना है और उसी की तैयारी करके आया है, तो ही वुड गो विद लाइक इशू नंबर ए एंड इशू नंबर बी। व्हाट आई से इज ओके स्टार्ट अप विद इशू नंबर बी फर्स्ट, जस्ट टू एक्चुअली टॉपल डाउन कि जो उसके पास लिखा हुआ है ना वो उल्टा कर दो। लेट्स सी नाउ व्हाट ही और शी डज। सो दैट इज वेयर इट इज लाइक। सो अच्छा जज जो होगा वो आपको कभी भी आपके फॉलो पैटर्न पे या आपके बनाई हुई चीज पे जानने ही नहीं देगा। So have this flexibility in you, and that is only possible when you don't rely on anything, just on you yourself. You have it in your mind, improvise it, and just channelize the things accordingly. Next slide, please. Teamwork. Assume roles. I have seen like instances where literally the first speaker he fumbled. उसकी तबीयत खराब हुई, क्या हुआ I don't know, nothing, but he literally fumbled. He had to sit back. The second speaker stood up. Now the thing was the judges allowed them, they were fine. In the meanwhile the second speaker can continue with his own arguments, which meant that they have sort of just given away, zero लग गया, ठीक है जी, पहले स्पीकर का जो भी मसला हुआ जो नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बहरहाल he could not do it. The second speaker stood up, he went on the podium. What he did is he was like
Okay, fine. Like your excellencies, it is but first of all, what I would like to do is I would like to continue with the arguments of my co-counsel. What he did is he actually took over the role of his co-counsel in between the round, and he somehow managed it. And I literally got that satisfaction on the faces of the judges कि मतलब सिर्फ वो चीज थी, मुझे नहीं पता वो राउंड जीते कि नहीं जीते, वो बंदा वो राउंड जीत गया, वो बंदा वो मूड कोर्ट जीत गया था सिर्फ उस एक चीज की बेसिस पे। नॉट ओनली दिस, मतलब वो बेसिकली उनके स्पीकर का कोई अच्छा खासा कोई मसला हो गया हुआ था, मुझे नहीं पता क्या था कि द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, वुड यू बिलीव, एक रात के अंदर उस बंदे ने वो पूरी साइड पकड़ ली। आईसीआरसी के मूव्स के अंदर जो है ना, आपके पास ये अलाउड होता है, आप के ना वो कहते हैं कि जो आपने रजिस्टर करवाया ना एक दूसरे को, आप सिर्फ वही काम करो, आप स्विच नहीं कर सकते। तो अगर पहला स्पीकर दूसरा स्पीकर जो गया है ना, तो वही स्पीकर्स रहेंगे, जो रिसर्चर उस रिसर्चर ही रहेगा, आप स्विच नहीं करोगे फिर रोल को। लेकिन उसमें वो ये अलाउ कर देते होते हैं कि जो है ना, चलो एक स्पीकर दोनों साइड बोल रहे, उसमें इश्यूज दो होते, चार होते हैं, मतलब दो इस तरफ से दो इस तरफ से ना, 8 नहीं होते। द पर्सन टुक ओवर द होल साइड और एक रात के अंदर उसने तैयार किया, he did it। कहने का मतलब ये है कि दिस इज योर टीम वर्क, दिस शुड बी द स्पिरिट, कि जहां पे आपकी टीम कहीं पे आपको लगा नहीं कर पाई, so this is योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको उठाओगे। देन अगेन आई हैव सीन इंस्टेंसेस, उसमें क्या होता है कि पहला स्पीकर गया, उससे क्वेश्चनिंग हुई, he could not cater it, the person what he did, he tried to just give some answers on the chats, लेकिन ऑफ कोर्स वही अगेन वही वाली बात कि आपका आर्गुमेंट दूसरे को उस तरह समझ, ऊपर से उस कोर्ट प्रोसीडिंग के फ्लो के अंदर तो वैसे ही बंदे को समझ में नहीं आती। द पर्सन कुड नॉट हैंडल इट वेल, सो व्हाट द सेकंड स्पीकर डिड इज, उसने कहा चलो ठीक है तुम नहीं कर पा रहे हो, ही स्टार्टेड राइटिंग दैट डाउन ऑन हिज ओन पीस ऑफ पेपर। He went to the podium and he said that, okay, fine, before starting it any further, I would like to first of all answer the questions asked from the co-speaker। They were like, and the judges, they literally, the judges bore ho chuke hote, but I saw judges, they literally like, you know, they were like सारे ऐसे they bent on, आगे होके बैठ गए वो सारे कि यार ये मतलब इसने कोई देखो आउट, एक बंदा ये मैंने नहीं देखा था उससे पहले कभी इस तरह होता हुआ। वो आगे होके बैठ गए और literally they were like, okay fine, yes please do it। And he literally, he first of all repeated the question, this was the question asked, this is the answer to it, number 2, number 3, number 4, there were 4 questions, I still remember, he answered 4 questions, and I could see judges with the points which they marked like in negative, they just cut it down and they made it positive। So this was the level of the teamwork over there, ठीक है। So fill up the gaps, आप देख रहे हो, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि जो आपका, जिस मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्लाइड्स में इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई शैल द बेटर स्पीकर बी ऑन द सेकंड, कि द सेकंड स्पीकर व्हाट ही डिड इज, अब ऑफ कोर्स ये सीन जो है, अगर आप इस तरह से करते हो कि आप अगर आप जाके ये हरकत करने की कोशिश करोगे, लेट्स सपोज द पर्सन वाज द फर्स्ट स्पीकर, सेकंड स्पीकर से क्वेश्चनिंग हुई, नाउ द ओनली opportunity this person has is the rebuttal round, or rebuttal is only meant for the rebuttal, now it is solely the discretion of the judge whether he allows it or not, and in most of the cases they don't, of course टाइम ही नहीं है, ठीक है जी। तो वो क्या कहते हैं, भाई रिबटल है, रिबटल करो, राउंड तुम्हारा हमने जज कर लिया है, और रिबटल से पहले ही वो जजमेंट अपनी कर चुके हुए होते हैं। रिबटल्स में गेम चेंजर जरूर होते हैं वो, कि अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग करो, लेकिन जो उससे रिबटल से पहले मोस्ट कह लो कि 80 to 90% जजेस को आइडिया हो चुका हुआ होता है, तो दे डोंट वांट टू चेंज देयर डिसीजन। सो व्हाट यू हैव टू डू बिफोर रिबटल, यू हैव टू क्रिएट दैट इंपैक्ट। सो उसका क्या तरीका है, यू हैव टू बी द सेकंड स्पीकर। सो द बेटर वन, या जो भी है जो भी सेकंड स्पीकर है, वो ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है कोई अच्छा बुरा भी होता है, एक अपनी अपनी एक बात होती है बंदे की ना। तो जो सेकंड स्पीकर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों साइड्स के ऊपर, कि व्हाटसोएवर द गैप्स वर रिमेन्ड बाय द फर्स्ट स्पीकर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी तरफ से वो पहले गया था, तो he might have left like, you know, some loopholes or something, you have to cover that up। वो आपने उसको सफाई, इसको बोलते हैं कि मैं उसको अपनी ज़बान में कहता हूँ कि उसको साफ करो, जो गंद उसने डाला उसको आप साफ कर दो, और फिर अपना भी जो है ना साथ केस को पुट अप करते जाओ। सो दिस इज हाउ टीम वर्क। थर्ड थिंग जो कि मैंने बहुत कम देखी है मूड कोर्ट्स के अंदर, कि अच्छा हमें ये लगता है कि जो रिसर्चर है ना, बस वो भाई साहब जो है ना पर्चियां पकड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, या बस वो चुप करके पीछे बैठ गए हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है। रिसर्चर का एक बड़ा मेजर रोल होता है, आपको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। व्हेन यू आर अ स्पीकर, यू हैव टू
you just not only have to like go with the flow, you just not only have to argue the case, you have to basically channelize your researcher as well. वो आपने कैसे करना होता है। अब बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, जजेस के ऊपर एहसान करते हैं, इतना बड़ा खद्दा ला के ना वैसे करके खोल के रख देंगे, सर जी जो दिल कर रहा पढ़ लो बीच में से। अब जो जो आपका जो अच्छा स्पीकर होता है, वो एक तो पहली चीज तो वो ये करता है कि जनाब साहब जो है ना, उसने नोट डाउन किया होता है कि जो सामने आपके ब्लू बुक पड़ी हुई है ना सर, इसके फलाने पेज के ऊपर फलानी लाइन के ऊपर हमने ये चीज लिखी हुई है, पहली चीज। लेकिन इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर जो सिर्फ, अब जाहिर सी बात है उसको सफे पलटवा रहे हो आप, मैंने आपको पहले बताया है, वो आपने उसको जितना फैसिलिटेट कर सकते हो आपने उसको करना है। आप उसको तंग करने के लिए नहीं वहां पे आए हुए हो। जितना उसको फैसिलिटेट करोगे, जितनी आसानी से उसको बात समझा सकोगे, उतनी ही आपको वो मार्क्स खुल के देगा, उतना ही वो आपसे खुश होगा। आप क्या करते हो, आप अपने, ठीक है ब्लू बुक्स रखो, उसका एक इंप्रेशन है, उसका उसका असल में बेसिक टेका उसका सिर्फ जो है ना ओपोनेंट टीम के ऊपर ही होता है। जजेस कितने वेले नहीं होते, कोई भी नहीं पढ़ता। मैंने नहीं आज तक किसी ब्लू बुक खोल के। आप करते क्या हो बेसिकली, आप उसको फैसिलिटेट कर, आप उसको जबरदस्ती पढ़ाते हो। आप उसको जबरदस्ती कैसे पढ़ाते हो, आपने आपने वो ब्लू बुक खोल के रख दी, फेयर है ना। अब लेट सपोज आपका इशू नंबर 1 है, इशू नंबर 1 के अंदर आपके 5 केस लॉ है, आपके उसके लेट सपोज एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट को आप डिफरेंट डिफरेंट केस लॉ से सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या करोगे, आप कहोगे दिस इज द पॉइंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय दिस 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 दिस। अब आपने केस लॉ जैसे ही बोला, आप साथ ही यू से आई वुड लाइक द रिसर्चर टू प्लीज प्रेजेंट इट टू द ऑनरेबल कोर्ट। रिसर्चर ने क्या किया, वो रेलेवेंट पोर्शन निकाला, हाईलाइटेड पहले से आपके पास पड़ा था, वो जाके उसके बेंच के सामने रख दिया, उसके प्रेसिडेंट के सामने रख दिया, उसको पढ़ा। अब जाहिर है एक सिंपल छोटे से 2 लाइनें मेरे पास आई हैं, वो मैं मुझे भी पढ़नी पसंद आएंगी और मुझे पता भी चलेगा दिस इज हाउ यू कोऑर्डिनेट, दिस इज हाउ योर रिसर्च। आपको आपने रिसर्चर को बैठने तो देना ही नहीं होता, यहाँ सारा दिन रिसर्चर सो जाए पीछे तकिया लेके, कोई पता ही नहीं होता किसी को कोर्ट में हो क्या रहा है, ये चक्कर नहीं होता। तो रिसर्चर को भी चलाना काम होता है आपके स्पीकर का। तो स्पीकर साहब ने क्या करना होता है, उसने कहना होता है कि रिसर्चर प्लीज ये चीज करो जाके प्रेजेंट। तो ये दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू इट, दिस इज हाउ अ टीम वर्क्स। क्योंकि आखिर में जाके हमेशा टीम जीतती होती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन जो मैटर करती है वो टीम परफॉर्मेंस हमेशा मैटर कर रही होती है। तो ये चीज थी टीम वर्क के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू assume the roles. If somebody could not do it that well, assume his role, be him first, then be you. लेकिन अगेन सब्जेक्टेड टू द टाइम कितना रहता है वो सारा कुछ आपने कैलकुलेट करके चलना है। सेकेंडली फिल अप द गैप्स, वही वाली बात, इफ ही फंबल्ड समवेयर, इफ ही कुड नॉट एस्टैब्लिश समथिंग दैट गुड, डू इट। thirdly take your team along, like get your researcher on foot, मतलब वो थक जाए लिटरली, वो जो है बाहर निकल के लड़ेगा आपसे कि यार ये तुमने क्या किया, इस तरीके से घुमाओगे उसको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। मतलब मैं वही वाली बात कि यार इस तरह के मैंने जो है ना वो होते हुए देखे हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो मिसाल नहीं है कि वो सवाल उसका दाल होता है, उसका जवाब चना दे रहे होते हैं। तो यार उससे सुनो, डरो नहीं। मतलब लोग करते क्या, नर्वस इतने हो जाते हैं, वो जाहिर सी बात है, वो जजेस का एक जाहिर तरीका इस तरह का होता है कि वो बोलते बोलते एकदम आपको रोकेगा, आपको वो आर्गुमेंट में बुलाने की कोशिश कर देगा, आपकी और चीजें निकाल के ले आएगा, आपको बिला वजह बेतुकी बात करने की कोशिश करेगा। लिसन टू हिम केयरफुली, देन अगेन रिवर्टिंग टू दैट द नो द जज वाली बात, just try to assess what he is actually trying to dig out. जज की ना जब भी एक सवाल होता है ना, एक सवाल के अंदर मोस्टली ना हर जज का ना एक माइंडसेट होता है, वो पूछना चाह रहा होता है उसको। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको 2 सेकंड में उसको क्लियर करके निकल जाओ, या उसको तुम जो है ना पूरे मुंह कोड अपना फंसा के रखो, वो तुम्हारा जो है ना टाइम अगर लैप्स हो रहा है तो वो रखे रखते और वो तुम्हें जो है ना गुजरने ना दे वहां से। यू हैव टू पिक दैट थिंग अप व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क, ठीक है। तो उसका यही सेकंड पॉइंट है कि हिट द राइट बटन, जो उसके दिमाग के अंदर बत्ती जली है ना उसी उसी को कैटर करो। अब वो पूछ रहा है जी रेफ्यूजी लॉ का, तुम उसको बताने बैठ जाओ कुछ और, तो वो तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो फिर पूछेगा, तंग करेगा, टाइम जाया करेगा, जो तुमने बोलना था ना तुम्हें वो बोलने देगा, वो सारा आपका स्ट्रक्चर हिला के रख देगा। तो सबसे जो इसमें इम्पेरेटिव चीज है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो कि यार ये चाह क्या रहा है। और थर्ड पॉइंट देन अगेन कंफर्म इफ द टाइमर स्टॉप्स और नॉट। ये मूड कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस पहले से पढ़ के जाओ कि क्वेश्चनिंग में, और इवन कुछ राउंड्स में कुछ जजेस भी अपने डिस्क्रेशन यूज करते होते हैं
ask the bailiff कि यार इसमें टाइमर रुकना है कि नहीं रुकना, and then improvise it accordingly. तो उसमें फिर अगर जाहिर सी बात आपका टाइमर नहीं रुक रहा, you don't have much time, तो अगर आपके पास जो है ना वो है, तो you have to escape that question as soon as possible. उसमें दो चीजें, एक तो आपको आता है तो फिर तो बहुत ही वेल एंड गुड, आप दे दोगे. अगर आपको नहीं आता, then you have to improvise, then click the right button कि यार अच्छा ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है. I mean, जिस तरह से अब कोई भी इस तरह का सवाल हो सकता है कि एक इस तरह का था कि इसके वो जो है द स्पीकर वो जस्ट स्पीकिंग, तो उसने रोका उसको. अब वो उससे सिंपल ये बात पूछना चाह रहा है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है आपका, वो आउटडेट कैसे हो सकता है. उसके तीन वो होते हैं एलिमेंट्स वगैरह, वो काफी लंबी चौड़ी बहस है. वो कहता है कि जनाब साहब इसको आउटडेट कैसे कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस अगर जो है वो हो, और जो है ना पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा ना गुजरा हो, तो ये नया कस्टमरी इंटरनेशनल बन सकता है. वो बेसिकली ये उससे पूछना चाह रहा है. स्पीकर साहब पता नहीं क्या उसको बता रहे हैं कि जी कस्टमरी यूं कस्टमरी यूं. अब अगर तुम्हें उसका आंसर नहीं आ रहा और बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो फिर ये आखिरी जो बात है, फिर उसको कहो कि सर जी रिसर्च जो है ना, दिस इज समवेयर इन द रिसर्च, कुछ इस तरह की सीन करके द रिसर्चर शैल लुक इनटू द मैटर. ये क्या सीन है जी? सो उसको आप ये बात करो कि द रिसर्चर शैल लुक इनटू द मैटर इन द मीन टाइम, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फर्दर, कुछ नहीं ताकि जो तुम्हारी तो ताकि जो आपकी बाकी की बात है ना, आप उसको एक्चुअली आप वो मिस आउट ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जज ने आपका सारा टाइम आप पे जाया कर दिया, जज करने ही बैठा हुआ. इसीलिए जब मैं आपको बोल रहा था कि ही इज एन एनिमी, दैट इज व्हाई ही इज एन एनिमी. ठीक है जी, ही इज देयर not to let you speak what you have done, that you have collected for several of the months, you have spent weeks on the research and all, you have been practicing it throughout. तो वो इसीलिए आपका एनिमी होता है कि he is there to actually like not let you do it, but you have to do it somehow without offending him. With you have to do it with all due respect. Fine, अंदर से बेशक आप उसको गालियां ही दे रहे हो. So this is what you have to do. उसकी बात को सुनो, उसकी बात में से देखो, उसके उसके अगर 4 सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होंगे जो तुमसे पूछ रहा हो. उन 2 पॉइंट्स को एज सून एज पॉसिबल उसको जवाब दो. इट विल गिव a good impression as well, and then it would just let you get away with it. Next slide please. Fine. So I think so this was what I could think of, like in the time whatsoever I had. Baki, of course, I mean I would like I'm welcoming the questions so that I mean I can answer whichever it is. So ताकि जो बाकी कोई चीज मैं miss out कर गया हूँ, I mean I'm ready to answer them out. So if you have any questions, I mean you can simply ask that. This is the segment for that I was talking about. थैंक यू सो मच हार्दिक. आई बिलीव कि सेशन जो है इतना डिटेल्ड और इंसाइटफुल हो चुका है ऑलरेडी कि किसी के क्वेश्चंस नहीं होंगे. और जिसका भी कोई सवाल है दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स और दे कैन रेज देयर हैंड्स. Is there anybody with questions? Okay, thank you very much everyone. चलो आज कोई क्वेश्चन नहीं है. रिदा अहमद हैज अ क्वेश्चन. यस प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. बस हाँ. सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि इज इट रियली इम्पोर्टेंट कि अगर द जज इज आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस थ्रू आउट, ठीक है, सो sometimes it's thought he is judging you by way of your answers only. So is it really important that you have to finish your arguments in the meantime? मतलब thoroughly अगर एक चीज मतलब ठीक है साथ साथ लेके चलना होता है सिर्फ, लेकिन if the judge is only asking you questions
ठीक है, और आपके इश्यूज जो हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स आप उतने स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, आप आंसर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे होते हो. सो आर यू गोइंग टू बी जज्ड बाय योर आंसर्स, और आपको आर्ग्यूमेंट्स भी उसी स्ट्रांग फुल तरीके से आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे? फाइन, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन बाय द वे. और अच्छा, तो अब इसमें वही वाली बात मैं आपको कहूंगा, नो दाय जज. अब कुछ जजेस, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आई मीन आई कैन फील दैट यू हैव बीन लाइक यू नो एन एक्सपीरियंस्ड मूडर. सो इसमें बेसिकली सीन यही होता है कि कुछ जजेस होते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं अपने आप को देखूं तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ जज के मुझे, ऑफ कोर्स जो है ना, वो बंदा बोर हो गया होता है कि जो है ना सारा सुन सुन के वो एक ही आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट सिंपली पुट अप द क्वेश्चंस इन अ मैनर to just dig out what they want to, and that's it. So if the judges are actually requiring that, then of course they can. इसकी टेक्निक बेसिकली फिर ये होती है कि जब आप देख रहे हो ना कि जजेस आर ओनली आस्किंग द क्वेश्चंस and they want it to be like question answer session more than a mood, then what you do is you actually try to slip on in your arguments within your answers. जो आपसे क्वेश्चन आ गया, आप उसके अंदर ही अपना आर्गुमेंट को उस पे जना स्लिप इन कर, तो you just deliver it in your answers. Hope I could answer it. Did you get I it, think it's Rida? clear to her. Azhar, you may go. Fine. Yes, Azhar, अस्सलाम please. वालेकुम सर. बस हाँ. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसके लिए कोई लेजिस्लेशन मतलब अभी बनाया नहीं गया, फॉर ठीक है, एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ठीक है. अगर एक में अंदर मोड्स नहीं बताए गए, जैसे वक्त गुजरता गया लेजिस्लेशन नहीं हुई लेकिन मोड्स आ गए, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, हम्म. तो सर उसके लिए हम रिसर्च कैसे करें, रिलेवेंट प्रोविजंस हम कहाँ से लाएं, थ्रू केस लॉज हम उसको देखें या फिर कोई और मेथड? हाँ, देखो, जब भी कोई ग्रे, इसको बोलते हैं ग्रे एरिया ऑफ लॉ, ठीक है. तो जो आपका ग्रे एरिया ऑफ लॉ होता है ना, वो, और मोस्टली जो आपके मूड को, अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मूड मूड का जो मतलब होता है, अगर आप मूड का लिटरल मतलब भी लें, कभी गूगल करके देखिएगा, तो मूड का मतलब यही होता है कि जिसका कोई एंड ना हो. ठीक है जी, जिसका कोई 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 कंक्लूजन ना निकला हो. तो जब ग्रे एरियाज होते हैं ना सर, बेसिकली उसके ऊपर फिर इसी तरीके से मूव्स भी रखे जाते हैं, और इसीलिए रखे जाते हैं कि आप करें तो उसके ऊपर कोई छोटी मोटी जो भी आपको मिलती है ना, आप उसमें मोस्टली आप फिर जाते हो केस लॉस की तरफ ही, क्योंकि देखो इंटरप्रेटर जो है ना आपके लॉ का, दैट इज द जुडिशरी. ठीक है. अब जो लॉ होता है, जब एक लॉ में बनता है तो लॉ ने इवॉल्व होना होता है. तो अगर लॉ इवॉल्व नहीं हो रहा, अभी इवॉल्विंग स्टेज के अंदर ही है, जैसे मैंने आपको दिया इसका, ये जो थे ड्राफ्ट आर्टिकल्स को मैंने आपको बताया, ये अभी तक कन्वेंशन तो नहीं बने थे, स्टिल इवॉल्विंग. इनकी अभी तक जो है ना वो ही नहीं हुई, रेटिफिकेशन ही नहीं हुई. लेकिन देन व्हाट यू डू इज, आप फिर जिस चीज को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, लेट सपोज अब आप सोशल मीडिया की बात करते हो ना, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं हुई, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की बात नहीं है, ठीक है जी. लेकिन आप ये देखो कि उसके ऊपर जो पुरानी आपकी जो एग्जिस्ट करती थी लेजिस्लेशन, वो क्या बात करती थी, तो फिर उसमें रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई होते हैं. ठीक है. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में आप देखते हो, आप कहते हो कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी, फिर आप उसके केस लॉ पे जाते हो, उसने उसको आपको आगे इंटरप्रेट करके दिया होता है. वो कहता है कि लेट सपोज भाई वो कह रहा है कि जी डेफेमेशन उठा लो, कि किसी ने डिफेम किया किसी बंदे को इन राइटिंग. अब इन राइटिंग की बात है, वो उस जमाने में अखबार खबूर होते थे जी, वो तब की लेजिस्लेशन है, तो वहाँ उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था. अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि जी आप सोशल मीडिया ने लिखा होता, सोशल मीडिया पे किसी को गालियां दे दो जाके. ठीक है. तो यू अप्लाई द सेम वेरी माइंड सेट ऑन दैट. अब उसकी फिर ये होती है कि उसके अंदर आप देखते हो कि उसमें प्रोग्रेस बेसिकली है क्या. ठीक है. तो वो प्रोग्रेस आपकी जो भी होगी, अब लेट सपोज उसमें अगर तो कोई किसी जज ने इस तरह की कोई बात की है तो वो आप करते हो, नहीं तो फिर आप एनालॉजी ड्रॉ करते हो ऑफ द सेम सिचुएशन. ठीक है जी. आप कहते हो कि सर सिंस देयर लाइज, ये बात काफी एक बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है. आप उसमें ये कहते हो कि जी सर एक इसी तरह का एक ग्रे एरिया था, सिंस देयर इज नो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट. ठीक है जी. बट इसी तरह का एक केस हुआ था फलाने दौर के अंदर, जिसके अंदर जजेस ने ये माइंड अप्लाई किया था
So that is why the same very principle would be applied to this very particular case. समझ आई? तो फिर आप ऐसे करते हो, आप analogies पे draw करते हो. तो number one, go with the precedent, क्योंकि judiciary is there to interpret, you are no one, first of all. But if that does not exist, go with such a precedent that was actually decided in something else, in some other context, pick it up, draw an analogy कि सर जी उसकी situation same थी, gray area था, तो इस वजह से इस पे ये analogy draw करके इस वजह से हमें ये facts हो हम conclude करने की कोशिश करेंगे. Fine? Is it clear, sir? I think it is. अच्छा, महर का एक क्वेश्चन है कि will the person who is fluent in English will have advantage against the one who is not? Acha. No. If the person who is not fluent in English is actually making some good points. अब ये तो नहीं है ना कि यार आप अगले बंदे को समझा ही नहीं सक रहे हो. सही है ना? मैंने आपको बताया ना कि I hardly remember मेरा as I've had कभी सीधा नहीं हुआ. मैंने पता नहीं कितना क्या कुछ बोलता रहा हूँ. ठीक है? लेकिन बात ये होती है कि बोलो उसको वो चीज के जो उसको समझ में आए कि भाई जो है कोई जो वो चीज पूछ रहा है ना वही आप वही स्लाइड्स को देखो कि अब वो आपसे पूछ क्या रहा है या आप बेसिकली स्टैब्लिश करने क्या आए हो. आपने जब वो चीज अच्छी स्टैब्लिश कर दी फिर अंग्रेजी मैटर नहीं करती. ठीक है. लेकिन ये है कि यार अगर इफ यू आर नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश ट्राई टू बी अ बिट एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट. अब देखो ये बात है कि एक्सेंट उक्सेंट नहीं इतना मैटर कर रहा होता लेकिन क्लैरिटी तो होना. अब ये तो नहीं है कि समझ ही ना आए कि वो एप्पल बोले और बनाना समझ आ रही हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना. तो इस तरह इतना नहीं होना चाहिए बंदे को. लेकिन ये अंग्रेजी को प्रेफरेंस अगर अगर कोई आई मीन आई एम सॉरी टू से अगर कोई दे रहा है एज एन एडजुडिकेटर देन आई मीन you should ask the one who has called him कि ये क्या बात है कि this is not a declamation debate going on. This is not at all moot court का कोई क्राइटेरिया अंग्रेजी की फ्लुएंसी नहीं. उसका लॉ है, उसका फैक्ट है, क्वेश्चन आंसर्स है, डेमिनोर है, पॉइज है. जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं यही बेसिकली इसी बेसिस के ऊपर जो है ना जजेस के सामने आपकी मार्कशीट रखी होती है. उसमें आपकी टाइम कीपिंग होती है कि आपने टाइम किस तरह से मैनेज किया है. क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं. आपका पॉइज डेमिनोर होता है. अब डेमिनोर के अंदर कुछ एक्सटेंट तक आप वही वाली बात मैं भी बात करूं कि आपने 40 में छलांगे नहीं लगानी होती. कुछ एक्सटेंट तक उसमें आता है आपका ये बात के ना. तो उसमें ज्यादा जो पॉइंट होता है वो कोहेरेंस क्लैरिटी के ऊपर. तो बी क्लियर. ठीक हो गया. आई मीन यार आप लोगों के इधर जाम शोरों से लोग हैं. आई नो देम. उनका मतलब जो है ना जिस तरह मैं मेरे जैसे ही है मतलब कि बिल्कुल ही कोई अच्छा एक्सेंट नहीं कुछ नहीं है एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. पता नहीं कहाँ तक नहीं गए अगले न्यूरमबर्ग तक होके आए. तो सिंपल इज दैट. तो बात ये है. और जब अगर आप इंटरनेशनल पे चले जाओ ये नेशनली हमें थोड़ा सा वैसे मसला हो जाता है. देन अगेन मैं वही वाली बात दूंगा. आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि मतलब ये एजुकेशन का हमारा प्रॉब्लम होगा. व्हेन यू गो इंटरनेशनली दे सिंपली डोंट बॉदर इवन कि आपको अंग्रेजी आती भी है कि यू जस्ट हैव टू मेक द पॉइंट्स. तो अगर आप वाकई किसी अच्छे मूव कोर्ट में हो और अगर उसका जो है एजुकेशन का वाकई स्टैंडर्ड अच्छा है so they are simply not going to judge you for your fluency but of course clarity and coherence must be there. वो जाहिर सी बात है. Questions from Aksha Sattar and Imtiaz Hussain Jakrani. They are asking about cross questioning. That is it the only judge who can interrupt you or the opponent party can also? Yeah, that basically depends on the dynamics of the move court. ठीक है जी. अब अगर आप किसी मॉक पे गए हो जिसके अंदर आप मॉक ट्रायल कर रहे हो चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स क्रॉस एग्जामिनेशन जब आप चीफ करोगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्शंस आएंगे. उसमें अलाउड है. जब अगर आप किसी नॉर्मल मूव कोर्ट में आईसीजे में कर रहे हो यानी कि जेसप कर रहे हो आप आईसीसी कर रहे हो उसमें आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं होती. तो दिस सोली डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मूव कोर्ट एंड द डायनामिक्स ऑफ हाउ के भी आप किस पे गए हो तो उसको हिसाब से तैयार करना. Thank you so much, Isaac. I think we are done with question answer session. Now, Fine. if you want to have some words, after that I will hand over the floor to Ms. Khamsa for conclusion of the session. Fine. There, like once again, I would like to thank you all for giving me such a responsibility, and I really wish that I was able to do at least something in the particular regards. Of course, due to the trust of time and all. I mean, I don't think so that I could. इतना ही हो सकता है इतने टाइम के अंदर ना. तो बाकी तो I mean
this is a wholesome offer, like ये समंदर है पूरा, इसमें it is so very like satisfying, it is so very charming. You just have to dive into it first, और निकलने का दिल नहीं करता. Literally मेरा आज भी दिल करता है, the way Eamon was saying once कि यार आज भी मुझे पोडियम दो, मैं अभी भी बोलने को तैयार हूँ. मतलब ना लिटरली वो इस तरह का सीन है. तो मैं अभी भी लगा होगा कि यार ये चुप ही नहीं करता, तो मुझे जहाँ मौका दे तो मैं शुरू हो जाता हूँ. तो वो लिटरली इट इज लाइक दिस. तो you just need to delve into it, and then you would not like want to even go. So the thing is, okay, thank you very much for everyone to like attend it, and to the team for entrusting me with such a big responsibility. And I wish that I could deliver it a bit to like I mean at least I could make some sense. And finally ये जो conclusion में मैंने एक बात लिखी है ना, whenever I coach a team, even when I was a participant, this is the thing when आ रहा, खेल के आ रहा, ठीक है जी, फाइट करके हारा. I mean, I have never seen Australia this confused, this much in a pressure, fighting with anyone, the way they were with Pakistan. So जब भी जाना है, the mindset should be, ये एक चिट अपनी रखो हमेशा, और इसको पोडियम पे लगा लिया करो, ताकि जब भी तुम्हें नजर पड़े ना, you must remember you have to demolish the game. ठीक है जी, जब गए हो ना तो बस फिर पता चलना चाहिए कि यार कोई होके गया है यहाँ से, बाकी छोड़ दो, जीत हार का मसला ही नहीं है. Put in your best, give something कि भाई लोग याद रखें कि यार अच्छा कोई बंदा ये हरकत करके गया था इस पोडियम पे. So that is your dominion, use it, demolish the game. Literally, I mean rebuttals के ऊपर अलग से एक सेशन रख लो. I'll tell you how to do the rebuttals, वो totally different एक चीज होती है. तो I loved to do the rebuttals, तो उसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा मौका मिलता था to demolish everything. तो just demolish when you go to the rebuttals, उड़ा के रख दो. Question आया मेरे ख्याल से. I think that people are still want to know something. Sidra, if you can please unmute yourself. थैंक यू सर. सर मेरा इसी पर एक क्वेश्चन है, रीबटल एंड सरबटल का. तो सर प्लीज इसको थोड़ा सा शॉर्ट में या ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दें. मुझे ना वो आवाज नहीं सी आती, क्या कह रही हैं? सर रीबटल और सरबटल का मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. फाइन. ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है. जो आपका अच्छा लीडरशिप स्किल्स के लिए यार ऐसे एक ना लीडरशिप स्किल का भी रख लो लेक्चर. अच्छा खैर, वो ना लीडरशिप स्किल के लिए एक बात हमेशा याद रखना है कि whenever you land into something ना, so some of my senior told me this, so आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी करना है ना, जब टीम में काम करना है, तो वो कहते थे कि 5 उंगलियां ना, ठीक है जी. So this is like एक उंगली separate है, it cannot apply any pressure or anything. So whenever you are together, so be like a bunch and act like a punch. ठीक हो गया. So सबसे पहली बात ये होती है, the leader is the one who keeps everyone together. ठीक है. So keep them like a bunch and let them act like a punch. It impacts a lot. It is quite colossal at the end. अच्छा जी, आपकी जो बात है रिबटल और सर रिबटल, बेसिकली जो एप्लीकेंट साइड होती है ना वो रिबटल करती है, और जो रिस्पोंडेंट साइड होती है वो सर रिबटल. की थी वो ये नहीं था इस तरीके से, वो आप नेगेट करते हो. दैट इज द रिबटल राउंड. और सर रिबटल हमारा कहती है कि भाई साहब ये जो इसने बात की है ना, इसने गलत बात को रिबट कर दे. तो मुझे ही बात की. सो दिस इज it is something most beautiful in a moot court if you know how to handle it. Dua, I think Dua Raza has a question. Can you please write it again in the chat box? Acha, before Khansa
हैव द फ्लोर, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब इस वर्चुअल वर्कशॉप को करवाने का हमने सोचा था, तो हाजिक वाज द फर्स्ट पर्सन जिसका मेरे जहन में आया था। तो मीन्स इस वजह से जो है इस सेशन का इतना जो है इम्पोर्टेंट होना लाजमी भी था। So Yeah, that is so दुआ nice of you. I'm highly obliged for this. I mean, for the kindest words ever. Baki chalo. Dua, can you please write in everyone? I think you are sending me direct message. So she wants to know, my question is that being a judge, what is the first thing you judge in voters? Depends. I mean, मैंने आपको बताया कि कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है, 4-5 क्राइटेरियाज होते हैं जिसपे आपने जज करना होता है किसी को। तो द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स लाइक जो मेरी जो कोशिश होती है ना, सबसे पहले देखो बात ये है कि वो हर बंदे ने तैयारी करके आया हुआ होता है, मतलब मोर और लेस लॉ शॉ फैक्ट फूक उनको आता है। तो जो मैं करता हूँ सबसे पहला काम मैं तो करता हूँ कि आई कॉन्फिडेंस अदर पर्सन आई जस्ट शैटर someone's confidence. I simply just try to just break his nerves or her nerves, simple. तो मैं उससे सबसे पहले ये काम करता हूँ कि मैं उसका जो है ना, जो भी वो इकट्ठा करके लाया है, मैं कोशिश करता हूँ सारा उसका ऊपर नीचे करना। और कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल हो भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much, Haziq. Khansa, we may now proceed towards closing the session. yes. अच्छा, आपने पहले ये सजेस्ट किया कि आप जो है वो कंट्रोल करें अपनी नर्व्स को, और एज अ जज आप उसी पर ही अटैक करते हैं। तो इसीलिए तो सजेस्ट किया है, you just try it once, I mean, you'll like it. So we are ending the sessions. First and foremostly, I would like to thank you, Haziq Ali Khan. It was really pleasure and insightful session, and for me it was so relatable. आपने बहुत सी ऐसी बातें की जो ICL में हमने लास्ट टाइम नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन अटेंड किया था, तो उसके लिए बहुत सारी बातें मुझे रिलेटेबल लगी। So it was really an insightful session. Thank you so much for your time, for your precious time. Thank you so much. उसमें बाय द वे जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम थी ना, जी, अली वकार वगैरह की, I was mentoring them, but due to some reasons I could not come to them directly, but I was somewhere stuck, but I mentored them in that. oh that's great. अच्छा, उस टीम के बारे में जो है ना खबरें पूछी जा रही थी। There were 2 teams from पंजाब, उनके बारे में जासूसियां की जा रही थी यहाँ पर कि भाई ये कैसा कर रहे हैं, how they are performing. Because I think you are मतलब उसी थे जो एक दूसरी टीम को जो है कोच कर रहे थे। I hope you understand what I mean to say. मुझे समझ नहीं कौन से वाले की बात कर रहे हो। मतलब लाहौर से 2 टीम्स थी, उनके बारे में जासूसियां हो रही थी आपके कि ये टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। तो मैं समझ गया, अभी मुझे उसका समझ आया कि भाई उसकी वजह क्या थी। एक के पीछे आप थे, दूसरे के पीछे कोई और था, एंड यू आर म्यूचुअल्स मतलब फ्रेंड्स आपस में। एग्जैक्टली, दैट वाज द रीजन। यूएमटी को सर मोमेंट कर रहे थे और पीयू को मैं कर रहा था। एग्जैक्टली, यू टुक माय पॉइंट। वो इसी तरह होता है यार, जब आपने किया होता है फिर वो बच्चे थोड़े से आपसे होते हैं ना। इनको बेसिकली मैंने एडजुडिकेट किया था, उसके बाद एक डायरेक्टली टू मी सर हमारा नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब जो कुछ मैं कर सकता हूँ करवा देता हूँ। एंड दे बाकी हार्ड वर्क बंदे की अपनी होती है, तो वो वही वाला सीन है कि लाइक दे एक्चुअली grasped it quite well, so they did it, mashallah. Okay, so now we are ending the session. बहुत ज्यादा टाइम हो गया। वैसे मेंशन था कि 1 घंटे का होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, it was worth it. ये तो चलो, Yes. Alone we can do I mean, nothing, but we can do so much. yeah, So I we hope have it serves the purpose. That is what matters. yes. We have also collaborated with 3 organizations to conclude this or to organize Art of Mooting, Legal Rights Forum, and GSLC Mooting Society, and Law Students Council of IAUI. So I think that they should give a little speech in the end of the session. So for the first, I would like to invite Mr. Muzammil Mughal, who is the president of GSLC Mooting Society.
Mr. Muzammil, you can unmute yourself. Yes, Mr. Muzammil हैं? I think so. I can just can I stop the video? Assalamu alaikum. Yes, am, yes, you can. am I audible? Yes, yes, you are. Walaikum salam. First of all, I would like to congratulate Mr. Ahsan and Ms. Khansa for successfully organizing this beautiful virtual workshop. And special thanks to Brother Haziq Ali Khan. And to be very honest, I really loved each and every moment of this session. And that was amazing. And personally, I learned so many things. And inshallah, they are going to help me out in my future. So thanks to all the speakers like Ms. Khushbak Jelani, Mr. Omer, Ms. Ume Eman, and Mr. Haziq Ali Khan. And being the part of the Mooting Society, I am thankful to everyone in my team, especially Ahsan and Khansa. And they have been doing splendid work through the Lowitz and through the GSLC Mooting Society. So the art of mooting was well defined by all the respective speakers, which was really needed, as many of the students are willing to participate, but they are not aware about the pros and cons of mooting. And we could see great interest of the students towards mooting, and that's a positive sign. We need more students towards the mooting so that they could polish themselves for the practical life ahead. And I personally learned many things, and I'm really looking forward to attend and to witness more of these virtual workshops in the future, inshallah. And as we have planned to organize provincial and national moots in the future, so I really hope to see all the participants and all the respective speakers as a judge in the future, inshallah. So special thanks to everyone, and congratulations once again to Lowitz and Mr. Ahsan, to Mr. Ahsan and Ms. Khansa. Looking forward to see you soon, very soon, inshallah. Best wishes. Inshallah, inshallah. Thank you so much. It was nice to hear from you. और जो लोग भी कह रहे थे कि उन्हें mooting की जो है opportunities नहीं मिलती, तो Mr. President ने अभी एक बहुत अच्छी announcement कर दी है that they are going to announce provincial and national moot court competitions. तो आप जो है connect रहें हमारे साथ. इंशाल्लाह जो है जब भी हम organize करेंगे competitions तो आपको मौका मिलेगा. So for now, I would like to call Mr. Salahuddin, who is the president of Law Students Council of IIUI. Mr. Salahuddin, you can unmute yourself. Thank you very much. सबसे पहले तो खंसा, I hope कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है. Yes, yes, you are audible. Thank you, thank you. सबसे पहले तो I'm really sorry because there was some kind of inconveniences हमारी तरफ से. यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मिड टर्म चल रहे थे, तो मोस्ट ऑफ ऑडियंस नहीं आ सकी, एंड उसका रीज़न ये था कि मिड टर्म थे. और उसके बाद जैसे मिड टर्म ख़त्म हुए तो फिर फीमेल साइड पे, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज कंबाइंड सेपरेट मेल एंड फीमेल, तो लेकिन उसके बावजूद द होल मूटिंग सेशन वाज रियली ग्रेट. एंड देन उसके अलावा कि हमारी स्पेशली जो हैदराबाद रीजन है उसमें बैठ के ये काम करना एहसन एंड खंसा इज अ बिग थिंग, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद से ही है. आप लोगों ने मेरे नज़दीक जो मुझे मेरी इल्म में बात है कि हैदराबाद में पहली दफ़ा कोई मूटिंग से रिलेटेड ऐसा कोई सेमिनार या ऐसा कोई वर्कशॉप हुआ है. सो अ बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ LSE, एंड आई होप कि आगे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी. मोर पावर्स टू यू गाइस. मैं आप सबका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, बट ये है कि हम होंगे कामयाब, एंड इंशाल्लाह इकट्ठे जो है हम आगे काम करेंगे. एंड लास्ट काउंसिल इज़ ऑलवेज फॉर यू गाइस, क्योंकि हमारा मकसद ही है तुलबा के लिए काम करना, हमारी जो लीगल फर्टिनिटी है उसके लिए काम करना. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. Thanks to you. It was nice to hear from you. So at the last we have legal rights forum, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में हमारे पास अभी तक कोई representative नहीं है. So I would like Ahsan to conclude their aims or their manifesto. Thank you so much, Khansa. Legal Rights Forum, that stands for LRF. LRF is a registered and not-for-profit organization, जिसको हम सिंपल जुबान में NGOs कहते हैं. It has been working in Pakistan since 2007 on domestic as well as on international level.
and it has been supported by many international organizations like UNDP, UNO, and Women Funds Asia, Asian Development, etc. So its mission is to protect and promote democracy and democratic institutions in the country, so that the rule of law, access of justice, peace and harmony in the country, human rights and good governance can be maintained throughout the country. So we are also having Legal Rights Forum as a collaborative partner, and they have also helped us so much to execute this very first event, जो कि हम पहले तो ये सोच रहे थे कि हम इसको फिजिकल कराएं, लेकिन इसको फिजिकल इसलिए नहीं करवाया गया ताकि हम जो है बियॉन्ड टेरिटरीज जो है बगैर किसी हद के ऑडियंस को सर्व कर सके. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग 600 plus people on board for this workshop, and we have tried our best with collaboration of Legal Rights Forum and other organizations. Yes, so it was all from our side. The Art of Mooting workshop is concluded tonight, Alhamdulillah, and that successfully, mashallah. So if आपको चाहिए, आप लोग का बहुत से लोगों का ऐसे messages थे और response था that they wants to be a part of Lawwits. So currently we don't have any plans regarding that कि हम Lawwits को इस तरह से organize करेंगे कि हमें members की जरूरत पड़ेगी. But in future if we have that, you all will be communicated or coordinated. अगर आप चाहें तो जो groups हमने बनाए हुए हैं अभी भी जिसमें आप add हैं उसमें रह सकते हैं, जो भी interested हैं और जो नहीं है वो left कर सकते हैं. So it was all. Thank you so much for everybody who participated and who were interested and tolerating us. Thank you so much. To you, Khansa. Khansa, I think you forgot the announcement section. Yes. You can announce. We are having some announcement क्योंकि इस वर्कशॉप का पर्पस ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि we can serve the people as much as possible. तो कुछ इश्यूज जाहिर होते रहते हैं सबके साथ, इंटरनेट इश्यूज, फैमिली इमरजेंसीज वगैरह. तो उस वजह से काफ़ी ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे हमारे पास जो कि एक या दो या तीनों, हो सकता है चारों सेशंस वो लोग अटेंड ना कर पाए. तो उनके लिए हमने जो है थोड़ा सोचा है, एज फार एज अवर पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज इंटैक्ट, हम उनको थोड़ा लीनियंसी देने की जो है कोशिश कर रहे हैं. एंड द लीनियंसी इज दैट we will be making available all the videos, मतलब जो हमारे 4 लेक्चर्स हैं वो, और उनके जो क्वेश्चनर्स होंगे जो कि अटेंडेंस के लिए आप लोगों के लिए मैंडेटरी हैं, उनको हम 3 दिन के लिए अवेलेबल करेंगे. लाइक इट्स 15 टुडे, तो 18 की रात तक जो है आप लोग इनमें से कोई भी अगर आपका सेशन मिस हो चुका है तो यू कैन वॉच दैट रेलेवेंट वीडियो एंड सबमिट योर क्वेश्चनर एज वेल. तो सर्टिफिकेट जो है, ई सर्टिफिकेट वो उन सब लोगों को मिलेंगे जिन्होंने ये 4 क्वेश्चनर्स जो हैं वो कंप्लीट किए होंगे. तो फर्स्ट थिंग वाज दैट. सेकेंडली ये कि सर्टिफिकेट जो है वो आपको विद इन जो है हम आप लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते, आई रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट डिलीवर हो चुकेंगे तो हम जो है ग्रुप में एक मैसेज छोड़ेंगे. एंड द थर्ड थिंग इज दैट जो हमारी फ्यूचर, जैसे खानसा ने ऑलरेडी बता दिया, हमारी जो भी फ्यूचर इवेंट्स वगैरह होंगे या कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह होगी उनकी अपडेट्स वगैरह हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे. तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट कनेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक, और उसके अलावा सब ग्रुप्स में भी रह सकते हैं. अगर आप लीव करना चाहें ग्रुप को आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स, यू गाइस कैन लीव द ग्रुप्स. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. ओवर टू यू खानसा. Yes, I think as and now we should conclude. There is nothing left, I think. So it was nice to have you all among us. Thank you so much, everybody. बहुत टाइम हो गया है अब तो. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz everyone.